Hey guys, and welcome back to the finale of season 1 of Documenting People with me. It has been a lovely first season. I did not expect to be this consistent. I did not expect such a wonderful response, such love and support from everyone I know. Thank you from the bottom of my heart. It means a lot to me that every one of you who commented, who appreciated, who reached out, and who watched or heard the episode on Spotify or any other audio platforms. It genuinely means a lot to me. And we are here at the end of season 1. Season 2 wouldn't be far away. It would be a short break before I come up with yet another season and more guests and more beautiful people to talk to. Till then, feel free to write to me at documentingpeople101 at the rate gmail.com and let me know all your feedbacks, what new things you would want to see in season 2. Should I change the format? Should there be some additions, or should I remove some parts of it? Let me know any suggestions that you might have regarding the podcast. Let me know if you would like to be on the next season of the show. If you would have any suggestions for the guests, someone you would like to see on the show, I would love to talk to as many people, and I hope to improve my hosting skills. I hope to get better at it and have reach to more and more people, to get more and more people onto the show. So today's guest is Daud Niaz. He is a songwriter, musician, filmmaker from UK. I met him thanks to the wonderful streaming world, of course, and he is such an interesting personality. I'm sure he has some fun stories, a wonderful life story to share with us. So, without any further ado, let's start the conversation. So, first of all, thank you, of course, for नहीं doing this. So, my first and favorite question is, how would you like someone who doesn't know you to know you? uh अच्छा for me for some reason मेरा real name जो है might not be the first thing that I would एक बंदा जो मुझे जानता है would more or less never call me that. They would call me by my Mm-hmm. nickname, which is Lucky. So Mm-hmm. like everybody जो close है मेरे, that kind of thing. But अगर बना so for me that would be important. That would be very personal. I would like that whole personal thing कि अगर कोई मुझे जाने. पर वरना Yeah. दुनिया के लिए बस वैसे जानना है. I would be like हाँ, that singer songwriter, filmmaker. हाँ, seriously, like filmmaker and everything. Yeah, तो yeah. क्या कहते हैं? I'm buying into And it. I'm not laughing at it. no. You never know. Like I've actually seen faces go like, huh, No, like no, absolutely not. नहीं पर मैं आपको नहीं वैसे बोल रहा. I'm like just saying like people. अच्छा खैर. Anyway, this is another conversation. क्या कहते हैं? Digress बहुत जल्दी कर जाएंगे I हम know. लोग. I'm that kind of person. You always need to reel me in. But yeah, singer, songwriter, an amazing person. बहुत बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान. अब Very humble, I सुपरफिशियल must प्यार say. है. बहुत बहुत humble, बहुत modest, Yeah. very down to earth. It's like, yeah, I'm too modest. But हाँ, वही. But नहीं यार, Nice, nice. singer songwriter, filmmaker. Mhm. मेरे लिए Nice. वो जो होंगे छोटे छोटे words बहुत जरूरी होंगे. Maybe Mhm. appreciation की वजह से कि appreciate कोई I कर know. रहा है या कोई Mhm. accept भी करता है. It's like, हाँ, ये बंदा म्यूजिक बनाता है या ये बंदा फिल्में बनाना पसंद करता है, कुछ ऐसा वैसा. Mhm. एक्टर भी Mhm. एक वक्त था. I would want to be called an actor, but right now मैं Right. उस पे concentrate नहीं कर रहा. I would probably add that in later. आप प्रोडक्शन हाउस है जी खुद में. You can just shoot a हम्म. film with yourself. Just write खुद ही it, लेके अपने आप को. act in it, direct in it, and make the music for it, sing the songs, and full blockbuster ready है. हाँ क्या सही है. Boman Rani वाला सी. Oh Yeah, dude, yeah. that would, what, good idea. I've actually thought of a few ideas इसी चीज को लेके, but I've never heard somebody else say it because normally it's just me saying it to myself. ये कर ले वो कर Mhm. ले वो कर ले, तेरा काम सेट है भाई, तू क्यों बाहर फिर रहा है. And now it's like Of somebody course, else says it. You're like, it makes more sense when other people say, or it feels really you should stupid when other people absolutely say. no, no. See, नहीं वो you तो should दो ही absolutely चीजें do होती it है ना. हाँ. because see, I think Kamal Hassan did a 22 character movie. I think, if I'm not wrong, 12 or 22 character movie. I think it उन्होंने was पूरा 12. खुद लिखा, he directed, and he acted all It the was a 12 spy thriller characters. ना. वो spy Ah, thriller yeah, थी. yeah, yeah. I didn't land very well, but he did make it. So आप फिर ये शर्त ना रखें कि वो बहुत ही amazing या फिर Oscar winning हो, लेकिन your aim is to you enjoy the process, right? Oh End yeah. product तो जैसा निकलेगा तो निकलेगा.
जो तो है सो देखनी है रहेगी भाई, ना, ये बन गया, अब बिल्कुल। खाओ, नहीं चंगा लगा ना खाना। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ये अगले की दिक्कत है। ये जाके ये वाली जो सोच है नहीं अगले या मैं बता रहा हूँ, ये जो सोच है ना कि जी आपको अच्छा लगे ना लगे, ये बहुत आगे जाके रियलाइजेशन होती है। आई थिंक इट्स रियली नाइस कि तुम्हारे पास, तुम ये आर्ट रियलाइज इज छोटी एज में कर चुके हो। आर्ट इज पर्सपेक्टिव ना। नहीं मगर बात ये ना, बहुत अच्छा लगता है ये चीज। वो तो है, वो तो है, नश डेफिनेटली एंड डेफिनेटली इट इज एंड जब आप एडिक्शन। ये ढूंढ रहे होते हो ना, या तो फिर मुश्किल होता है बट थोड़ा। आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली जस्ट, आई थिंक इट हेल्प्स जस्ट कीपिंग इट इन माइंड कि हाँ इट विल अफेक्ट, आप जितना भी कॉन्शियस और मेडिटेट होके इन द प्रेजेंट हो जाओ, आई थिंक इट डज अफेक्ट। बट कहीं ना कहीं एक रखना टाइम टू टाइम चेक कि मैं ये ढूंढ नहीं रहा था, इट हम्म मीन्स अ लॉट, बट आई वाज नॉट सर्चिंग फॉर इट। सो हम्म आई थिंक इट मेक सेंस। मतलब मुझे तो इतना थोड़ा सा रियलाइज हुआ है अपने हम्म 10 एपिसोड की जर्नी में, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आउट इट वाज, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई 20 व्यूज से ज्यादा आएंगे। हम्म एंड बिकॉज 100 व्यूज आ गए, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी राइट नाउ। इट मतलब माई माइंड गेट्स ब्लोन कि मेरे वीडियो पे 200 व्यू हैं, क्या बात कर रहे हो। इट इज द बेस्ट दैट आई कैन पुट आउट राइट नाउ, बट आई ऑल्सो बिलीव कि देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर इतना। आप सोचो, अब मैं 1.5 घंटा मांगू और नेटफ्लिक्स 1.5 घंटा मांगे, तो आप नेटफ्लिक्स को दोगे ना यार, ऑफ कोर्स। नेचुरली इट नेचुरली मेक्स मोर सेंस, हाँ why बिल्कुल wouldn't ऐसे ही। you? So I am not नेटफ्लिक्स demanding इज that way. ऑलवेज देयर फॉर अस Of course, and it has so much content. मतलब कभी कभी तो मैं नेटफ्लिक्स पे भी नहीं मिलता कंटेंट, बट फिर वो आपकी चूजीनेस होती है, ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स बस बहुत है। वो बस आपका If you मूड होता explore, है, आप आपको हाँ, ज्यादा चॉइसेस मिल गई हुई हैं और आप गए हो बिगड़, यू बीन या नो, स्पॉइल्ड। दोज आर वन ऑफ द मूड्स जहाँ पे आपको दुनिया की कोई चीज नहीं पसंद आएगी, क्योंकि आपको ये है कि बेटर देन दिस, बेटर देन दिस। इससे भी सो बेहतर हो, इससे भी बेहतर या हो, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे नेटफ्लिक्स ही में है। वो ऑप्शन ले आया है ना, प्ले एनीथिंग वाला, शफल आई थिंक शफल उसको वाला, कहते हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ ऐसा कुछ नाम है उसका, कि बेस्ड ऑन योर पास्ट चॉइसेस इट विल प्ले योर हाँ रैंडम रैंडमली पे थिंग्स। कुछ, हाँ हाँ, जी। वो रैंडम को ही 10 बार दबाए जा रहे होते हैं कि नहीं ये वाला तो पसंद नहीं आया रैंडम में भी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रैंडम को भी टच नहीं करता। रीजन पता है क्या होता है? I'm like ना, कुछ आ जाएगा सामने, आई बी लाइक नहीं ये भी या पसंद नहीं है, फिर मुझे वो रैंडम। फैमिली, या मुझे मुझे अपने आप को साइन पोस्ट करना पड़ता है, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, वो क्या क्या कैटेगरीज ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अच्छा फिर वो नहीं मिलता, देन आई गूगल इट, एंड देन फिर मेरे पास एक हाँ, और ऐप है जिससे मुझे पता लगता है वो कौन से स्ट्रीमिंग सर्विस पे है, फिर मैंने उस वो स्ट्रीमिंग तो सर्विस गूगल पे खुद नहीं जाना। बता देता है। नहीं गूगल खुद नहीं नेसेसरी, आपको बोलना पड़ता है ना कि क्या ये चीज इस स्ट्रीमिंग सर्विस पे ओह, है या नहीं है। तो मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि इफ यू टाइप इन द नेम ऑफ द फिल्म, और गूगल बता देता है वहां पे कि इस वाली प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लेकिन मोरलेस ये हिंदी वो उसके लिए होगा, इंडियन बॉलीवुड प्रोबेबली, मूवीज के लिए होगा मोस्ट हाँ प्रोबेबली। और आप लोगों हाँ। के, हाँ क्योंकि वो पे करते हैं ना गूगल को कि जी हमारा पहले आए, प्लीज मेहरबानी आपकी, प्लीज। राइट राइट, हाँ तो इस यस। लोकल बंदे यूट्यूब पे जाके देखना शुरू कर दे, फिर तो काम नहीं चलेगा ना, आपके पास इतनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं अब तो। तो अब यूट्यूब भी ले आया है अपना भी पेड। यूट्यूब ने अपने लॉस काफी स्ट्रिंजेंट कर लिए, पहले तो हर मूवी मिल जाती थी यूट्यूब पे, अब कम वो मिलती अभी है। अभी भी मिलती है, अभी भी हाँ, मिलती है। आपको अभी बस थोड़ा ना वो एक्चुअली क्या है कि हम लोग मतलब थोड़ा आलसी हो गए हैं। पहले जब पैसे नहीं होते थे, गरीब होते थे, मतलब गरीब तो अभी भी है, पर एक स्टूडेंट गरीब, यू अंडरस्टैंड, मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अभी थोड़े से है ना कि खर्च कर सके। तो स्टूडेंट गरीबी में ये होता था कि आप, उन्होंने लिटरली 5-5 मिनट की क्लिप करके पूरी फिल्म डाली, और आप पूरा देखते हो 5-5 मिनट की क्लिप लगा लगा के। पर अब आपका आलस हो गया है कि नहीं, अब पूरी एक साथ चाहिए। नहीं ये पूरी एक ऐसे अलग साथ अलग नहीं चाहिए, देखनी हो भी शीशा प्रिंट एचडी में हो, चलो 4K ना भी हो, मैं इतना डिमांडिंग है। नहीं हूँ, या एचडी में तो हो ना। सिनेमा प्रिंट है उसकी तो तो जरूरत ही नहीं स्टूडेंट है। स्टूडेंट ईयर्स में तो आई हैव वॉच लिटरली कैम रिकॉर्डेड भी। People that know me, right, especially between the ages of 16 कह लो and 24, मैं हर दिन, चाहे इंग्लिश मूवी हो, चाहे फ्रेंच मूवी हो, तो चाहे इंडियन मूवी हो, हाँ हाँ, हर दिन एक मूवी जब देखनी तक है। नहीं देखी तब तक सुकून नहीं आ सकता। और या देखनी भी रात के सेम, टाइम में कि उसके बाद नींद आए, वरना नींद नहीं आती उसके बगैर। प्रॉपर वो नशे ही वाला काम मैं होता है, कहता हूँ, प्रॉपर। आई हैड पीपल दैट यूज्ड टू टेल मी से लाइक, लकी तू पागल तो नहीं हो गया, लाइक हर दिन मूवी। मैं दूसरे नशे या नहीं करता, मैं ये करता हूँ। सेम, पर आई हैव पर वॉच सो मेनी बैड फिल्म्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आप कितनी कोई अच्छी फिल्म्स देख लोगे ना। मैंने बता रहा हूँ, आई हैव सीन सो मेनी गुड मूवीज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि डीवीडी मिलती थी जो 5 in 1 वाली, नहीं, जिसमें से ऑफ दो कोर्स मेन आई स्ट्रीम सीन फिल्में गुड होती थी। आल्सो, हाँ बट देन बैड भी उसी में आ जाता है कि आप आप, देख लेते हो हाँ तो। हाँ बिल्कुल।
दीपिका 2 मेन स्ट्रीम फिल्में हैं उसमें, या और बाकी 3-4 फिल्में वो ऑब्सक्योर हैं पर स्टोरी वाली हैं, ओ कहानी वो है। 5 डीवीडी वाली ना, हाँ, यहाँ 5 भी इन 1 आता था वो, डीवीडीज़। सेल हाँ, चल रहा बिल्कुल। है वर्ल्ड वाइड, व्हाट इज हाँ, दिस? नहीं, मेरे साथ यहाँ नहीं। पे यूके में नहीं होता था। मैं तो पाकिस्तान में था। आई यूज्ड टू गेट इट ओ फ्रॉम देयर। अच्छा अच्छा। तो उधर फिर से सेल मैंने ही चल रहा है वहाँ पे तो। हाँ, हाँ, मैंने उधर से रेंट करनी, यहाँ पे घर पे लानी। 15 रुपए की रेंट होती थी, और हमारे कंप्यूटर में हमारे ला पास के 13 में कॉपी थी। कर लेते थे। और फिर वापस दे यानी डीवीडी चल नहीं रही। रेंट ही होता था ना, इट वाज रेंटल, प्रॉपर खरीदनी भी नहीं मैं है। आपको बता तो रहा हूँ, उसके मैंने बाद रेंटल पे भी पैसे बचाने। 30 में मुझे ये होता कि मैं 6 फिल्में ले आऊं। डोंट यू गेट इट? अब मैं जाना, अब लाइक क्या डीवीडी नहीं चली, एंड कॉमन नॉलेज थी कि कुछ डीवीडी शायद आपकी डीवीडी प्लेयर के साथ ना चले। हाँ क्लियरली हाँ, एवरीबॉडी नोस इट, एंड इट्स राइट फाइन। राइट। रिकॉर्ड कर लेनी, हाँ वापस दे आनी, नहीं चली, अच्छा हाँ दूसरी। उधर आधा घंटा खड़ा रहना है, चलो कोई हाँ। और देख लें, कोई और देख लें, फिर उठानी वो, फिर लेके जाए। सब्र के साथ काम करना है, ये नहीं कि आगे फिल्म अब देख लूं मैं 2-3 घंटे। उसका वो एग्जीक्यूट प्लान तभी हो सकता है कि अगर ये पहले घंटे के अंदर सारा कुछ हो जाए, आप रिकॉर्ड भी कर लो और वापस भी ले आओ। या मैंने उस वक्त या जाना जब बिजली पता है कि अब आने वाली है, और मैंने घर फोन करना, बिजली आ गई, हाँ जी ले आओ। जाके जल्दी से लेके अंदर से डाला। कंप्यूटर कोई ऑन ना करे, क्योंकि जब कंप्यूटर हाँ, जब गर्म होता है तो डीवीडी प्लेयर मसले मसले पैदा करता है। हमने आते साथ राइट रिकॉर्डिंग राइट करनी है, ये भी राइट नहीं चेक करना कि राइट। प्रिंट अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि मकसद थोड़ी है डजंट ये चेक करना। मैटर, डजंट उसी वक्त मैटर। रिकॉर्ड कर लो, बाद में या देखी जाएगी। इससे या कभी कभी हमारे पास वो डीवीडीज वाकई नहीं चलती थी, इससे उस वक्त हाँ। दुख होता है यार, ये फिल्म देखनी तो थी उसके यार, ये बाद क्या हो गया। आफ्टर फ्यू इयर्स, ये तो मुझे बहुत इनिशियली डीवीडी वाज, सीडी एंड डीवीडी हम्म कॉन्सेप्ट वाज लॉन्च्ड, हम्म तब होता था किराए पे मिलती थी। बट देन आफ्टर दैट इट बिकेम सो पॉपुलर कि उसके बाद फिर किराए पे मिलती ही नहीं थी, देन यू हैव टू बाय इट। तो तब हम्म। आई थिंक 25 रुपीज की मुझे याद है, क्योंकि 50 की 2 आती थी, तो 50 की 10 फिल्म होती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि 200 करोड़ लगा के बंदा फिल्म बना रहा है, 5 रुपए में देख रहे हो। पर 5 रुपए में देख रहे हो, जो उसको अभी पहुंचना भी नहीं है, या तो पहुंचे ना तो फिर ऑफ भी कोर्स मजा है, नहीं, फिर भी मजा है। नहीं पहुंच रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। सो बट ऐसे बहुत फिल्म्स देखी हैं, और ये जो एडिक्शन थी मेरी भी थी, आई सो वियर्ड, इट्स एग्जैक्टली द सेम, कि रोज सोने से पहले एक फिल्म देखनी है। और तब तक मोबाइल आ गया था, तो मोबाइल पे देखते थे, छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट्स नॉट इवन लाइक अ बिग स्क्रीन। और इस वजह से, बिकॉज आई एग्जॉस्टेड सो मेनी हिंदी फिल्म्स, एंड आई एम नॉट रियली बिग इनटू इंटरनेशनल सिनेमा, व्हिच इज माय बैड, बट आई एम नॉट। सो मैंने बहुत ज्यादा रीजनल एक्सप्लोर किया, मैंने बहुत ज्यादा गुजराती, मराठी, हम्म। बंगाली तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। नहीं, पर सो आप लोगों के उसमें यहाँ तो है बहुत भी ना अच्छी कितनी फिल्म सारी मिली। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपके यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज मलयालम, भी बहुत, और मलयालम और बहुत तेलुगु अच्छी मूवीज फिल्म। जो हैं, दे आर लाइक तेलुगु, अमेजिंग स्टफ। या They've got या या amazing stuff. Like उधर से या तो अब रिक्रिएशन हो रही है बॉलीवुड में, like literally Bollywood a is lot of just it, या like छापोइंग, कोई, फुल छापोइंग। हाँ वो जो हम लोग डीवीडी के साथ करते थे, वो लोग फिल्म के साथ कर रहे वो उनके साथ कर रहे हैं। हैं। उधर तो उठा रहे हैं, वो भी छाप दे आई रहे हैं। जस्ट होप जो राइटर्स हैं उनको अच्छे पैसे मिल जाते होंगे। वंस मैं आइकिया में फिर रहा, तो मैंने वहां पे हाँ हरिहरन साहब को मिला, एंड आई वाज जस्ट लाइक I couldn't even say his name. अच्छा, just for context, मैं while I was younger, और छोटी एज में, I used to stutter. So Hariharan is hard to say when you stutter. या आई नो। Too many hours. Too many R's and too many H's, and it's like, and your mind is like, it's like cannot compute, वो scene हो रहा होता Yeah. है, like, and I'm like, I couldn't even call out his name, right? And then this person goes past me, and he's clearly, he can see them struggling. Hariharan Saab like picking stuff up, and he's like literally a meter away. मैं उनके पीछे हूँ. Yeah. And obviously he used to have a ponytail back then. अभी तो नहीं Yeah. रखते होंगे. Yeah. तो वो छोटी सी ponytail रखी होती थी उन्होंने. And I'm like, and this guy just goes past me, and he's like, yeah. Go talk to him. Indian ही थे वो भी. He said, go talk to him, right? And I'm like, is it? हाँ, Hariharan. He's Hariharan. And I just couldn't say Hariharan, so I was like, Kalodian cousin. And he's like, yeah. And I was like, jata. And he just moved forward. I was like, nah, this How is moment cute. chala That gaya. is cute, yeah. I'm like, मैं बता रहा हूँ, I was like Yeah. starstruck. That was actual starstruck. ये उससे भी younger था. I Yeah. was like, maybe I was 9 or something. And I was हाँ. like, hi.
ये कौन, ये किसको No, देख this is the लिया है? reason I genuinely do not want to spot stars because I feel I'll embarrass myself so much. मैं बता रहा हूँ, मगर मेरी अब तो नहीं, अब इतना नहीं होगा ना, यू जस्ट बी लाइक हाय, इज इट ओके इफ आई गो टेक अ पिक्चर, बिकॉज़ ऑब्वियसली Yeah, आपको थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना आ गया है, yeah, yeah. एवरीथिंग लाइक, एंड अपनी डीप वॉइस निकाल के बात करके से हाँ जी तो ऐसे करके, पर ना Yeah. ना उस वक्त तो समझ ही नहीं थी। अच्छा, 9 year old बंदे के लिए हरिहर वाज अमेजिंग, Of course, लाइक but बैक also देन। that depends कि I know, but then also depends कि उस टाइम पे आपको क्या चीज अच्छी लग रही होती है, इम्पैक्ट कर रही होती है। तो जरूरी नहीं है कि वो probably he is not that big of a star of the person। अच्छा, तो कुछ थोड़ा अपना बचपन के बारे में बताएं ना कि where were अच्छा, you born, how was the times then, जिस ओए जमाने में आप पैदा हुए। ओए हम Like 80 you are a हम dinosaur, 86 so हम 86 के ज़माने में पैदा हुए हैं। सो 1986 अबू धाबी, हम्म, कॉर्निश हॉस्पिटल। मैं डेट नहीं बताऊँगा क्योंकि नहीं। रहने देते हैं। रहने देते हैं। हाँ, बहुत सारे फैन्स निकल आएँगे जिनके साथ मैं शेयर करता हूँ बर्थडे अपना। वो कहेंगे ओह! ये भी है, आप भी हैं, वो भी हैं। अच्छा, तो बात दरअसल ये है कि इस कंट्री के अंदर पैदा हुआ मैं, यूएई में, एंड आई ग्रू अप देयर। स्कूलिंग भी वहाँ पर हुई है, मोस्टली जवान भी वहाँ पर ही हुए हैं, और 19 की एज में आई मूव टू हम्म। पाकिस्तान। बाकी यूएई की बात ये है कि बेसिक स्कूलिंग के हवाले से सारा कुछ वहाँ पर हुआ, इट हैपेंड देयर। व्हाट एल्स 19 वुड is यू like लाइक? your entire childhood was there ओह in या, UAE. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। Yeah. It was all there. It was all there. And like I grew up there, schooling वहाँ पर हुई है, craziness, जवानियाँ, पागलपन, हाँ. all that happened in UAE. Mm-hmm. Self How was discovery it? वहाँ पर started. It How was was the like माहौल, like माहौल? it was like बड़ा international सा हिसाब किताब था। We had Mm-hmm. Indians, we had Bengalis, we had people from Bangladesh, Bengalis जो हैं, Mm-hmm. just to make that Uh-huh. तो Yeah, and yeah. and Pakistanis, we had a few Afghanis that we knew, few नहीं, बहुत सारे, but कहने का मकसद है Mm-hmm. कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, and South Asians के आपस में, not talking about the Middle Easterns, Mm-hmm. South Asians में uh, not many Nepali friends, but Nepali लोग थे, but it हाँ. was just more predominantly it would be Indian, Bangladeshis, and Pakistanis. देसी बहुत सारा देसी ओ बहुत people. बहुत बहुत हाँ. सारा रज के भरा पड़ा हुआ है, एंड उधर उनके साथ उधर ही फिल्में देखी, उधर अप्रिसिएशन भी है बॉलीवुड की काफी हद तक। Mm-hmm. You've Mm-hmm. got like literally 3 to 4 रेडियो स्टेशंस जिनकी आपस में लगती है। एएम से Mm-hmm. काम स्टार्ट हुआ था, फिर वो एफएम पे है। आई एक्चुअली रिमेम्बर जब वो एएम पे होते थे, मेरी बहन Right. लगाती थी, बड़ा मुश्किल होता था, इट्स हाँ, हाँ. लाइक आ गया Correct. ऐसा, नहीं नहीं लिटरली आप पकड़ता है. नाखून नाखून लगा के, बिकॉज दैट्स द फाइन ट्यूनिंग के लिए वही चीज कर सकती है, और कोई भी चीज नहीं कर सकती, Yeah, लाइक ऐसे yeah, कर रहे होते yeah. हैं, until you And you find the don't right really place. move it anywhere because वो Yeah, फिर उसी सेटिंग पे रहता है और फिर थोड़ा सा हिला के वो वापस आ जाता है हाँ because हाँ, कौन ढूंढेगा उतना वापस। ऐसे ही है, वही वाला हिसाब किताब है। तो वो बड़ा ना, वो क्या Yeah. कहते हैं, फिनेस की जरूरत होती थी, वो उस वक्त का एएम से अ, छोटे होते हुए, लाइक आई थिंक आई वाज 11 या 10 था जब एफएम पे 2 चैनल्स आए, एक हम एफएम आया और एक 89.1 आया। Mhm. हम एफएम was predominantly handled by a mixed Pakistani Indian, क्या कहते हैं, अपना Mhm. रेडियो स्टेशन था। 89.1 was like very very क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, इंडियन उस तरीके से, Mhm. इवन तो वो सारे वही म्यूजिक प्ले कर रहे थे, लेकिन यू कुड हाँ, टेल हाँ। कि क्या कहते हैं, उधर इंडियन इतने आरजे, सॉरी पाकिस्तानी आरजेस नहीं थे, हम एफएम पे थे। हम एफएम एट सम पॉइंट Mhm. एक्चुअली पाकिस्तान में भी फिर आया, but Right. yeah, that's a different thing, पर हाँ, like I Was it saw the that, same हम टीवी नेटवर्क का रिलेटेड है it could या be, अलग है? it could be, you know what, I have no idea, but you know what, it could be, you know what, it probably would be, क्योंकि या वो उन्होंने, हम टीवी वालों ने तो ऑलमोस्ट हर जगह पे हम डाला हुआ है, या so you हम never टीवी know, इज वेरी बिग। you know what, मुझे रियलाइजेशन उन्होंने हो रही हम है। मार्ट खोल दिया तो हाँ आई वाज हाँ, लाइक या मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे अब हो रही है रियलाइजेशन से, इट कुड हैव बीन देम, इट कुड हैव बीन देम, लेकिन उधर इंडियंस भी बहुत सारे थे, राइट सो आई मीन राइट। मोर और लेस वही होना है। But then एंड also it also if you see ये जो बिग शॉट्स होते हैं मीडिया किसी भी इंडस्ट्री में तो मोरलेस वो 3-4 लोग ही होते हैं जो सारे गेम्स खेल रहे होते हैं। तो कभी इनका ये चल रहा है कभी वो चल रहा कभी है। उनका वो चल रहा है, उनके यहाँ या पैसे लगे हुए, या इनके यहाँ पैसे लगे, हर जगह ही फिरे हुए हैं। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। जब भी आपको ऐसे वो रिवोल्ट आए ना कि ये अच्छा नहीं है दूसरा वाला अच्छा है तो जस्ट रियलाइज कि
सब सेम. हाँ सब सेम है. Exactly. मैंने एक जगह पे काम किया था और क्या कहते हैं, जो ओनर था Mhm. कंपनी का, उसने हमारी राइवल कंपनी को भी वो बंदा ओन करता, लाइक लिटरली 100% ऑफ इट. Wow. इट मेड नो सेंस. इट्स लाइक व्हाई. उसके लिए वो प्रॉफिटेबल क्यों था? कि हमारे बीच में राइवलरी थी, लाइक प्रॉपर राइवलरी, ये नहीं कि हल्की Yeah. फुल्की, प्रॉपर Yeah. राइवलरी. सेल्स था ना. अच्छा मेरा बहुत 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 बड़ा एक्सपीरियंस है इन सेल्स, Mhm. टेली सेल्स टू बी एग्जैक्ट, ओवर द फोन, गोरों के साथ. वो दोनों को ऑन करता था. वो इतना प्रॉफिट करता था बिकॉज हम लोग लिटरली एक दूसरे के टारगेट्स को मैच कर रहे होते थे. हमें ये होता था मंथ के एंड में हाँ. हमें ओनर जो है कहे, यू नो व्हाट, आप लोगों के सेल्स ज्यादा है, एंड दैट वुड बी, Yeah. बस ठीक है, यू नो, सीना तान के फिर ऐसे वो वाला Yeah. हिसाब किताब. मैं हैरानी अब होता, पहले जरूर हुआ That था. is true. That is true. But game तो उसी की strong है ना. He हाँ has figured it out. That is such बिल्कुल. a cool thing to do वैसे. मैं बता Nice. रहा हूँ, मुझे नहीं समझ लगी थी. इट्स लाइक दो पार्टियां खरीद लो और आपस में लड़ाओ इन्हें. लाइक लिटरली इतने ऑब्सेस्ड होंगे कि यू नो एक दूसरे Yeah. से आगे बढ़े कि वो हर चीज करने के लिए तैयार होंगे. एंड दोनों सूरत हालों में आप पैसे बना रहे हो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट. Yeah. So tell me a little bit about your family ना. आपके parents क्या करते थे? करते अच्छा, हैं. मेरे तब पेरेंट्स, क्या करते थे? my parents were nurses. My father worked for the military, my mom worked for the police over there. और they, Nice. हाँ, तो they served the UAE. How does military work? Like I again ignorance, Military but I hospital. genuinely do not know. हाँ. नहीं तो पर मिलिट्री में if you have to work for a country's military or military हम्म. hospital आपको उस कंट्री से नहीं होना होता. You can join any UAE other में, country's military. यूएई में कर सकते हैं आप. नॉट Oh, जॉइन द मिलिट्री. सो आप लाइक okay. इन फील्ड वाले नहीं होंगे. मेडिक जिसको कह सकते हैं. मेरे Mhm. फादर, ही वाज अ स्टाफ सर्जेंट व्हेन ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द Mhm. मिलिट्री. सो ही वाज लाइक उधर, Right. बट ही वाज अ नर्स. Mhm. So he was part of the med corps over there. Nice. And my mom, again, she's also a nurse, and she was in Mhm. the police clinic. तो Mhm. वहाँ का, तो ये ऐसे था सीन. एंड हुआ ये कि यूएई में वी स्टार्टेड ऑफ इन दिस इंडियन क्रिश्चियन स्कूल, और Mhm. उसका नाम था शर्वुड एकेडमी. उनके यहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो उधर Right. उनका नाम था शर्वुड एकेडमी. तो Mhm. शर्वुड एकेडमी में हमारी स्टार्ट ऑफ हुआ है हमारा. उनका क्या कहते हैं, किंडरगार्टन होता था मैरीलैंड. फिर मैरीलैंड से फिर शर्वुड एकेडमी गए. शर्वुड Uh-huh. एकेडमी में I was there till the क्या कहते हैं, fourth grade. And my parents had to change because I was being constantly bullied over there. तो Okay. bullying का बहुत heavy effect था वहाँ पर. And the school wasn't helpful either. That was the biggest issue Mhm. here. कि they knew that was a problem, but they just couldn't handle it because हर कोई बहुत अच्छी fees pay करता था वहाँ पर. So Mm. so you won't piss off a bunch of people Also I just don't because think एक कि बच्चे उस का टाइम पे problem हो इतना रही है. awareness नहीं था. Uh, Bullying was just, against bullying. yes, वो भी चीज Yeah. थी. Plus I had learning disabilities. That means in other words, I've actually at the age of 27 जाके मुझे मेरी proper वो पता लगा कि I'm Mhm. dyslexic. So Okay. मुझे dyslexia था, and that wasn't helping. It was only making things worse. So I was Mhm. bad in class because I was being picked on, and obviously I was Mhm. pushing back, fighting back, जो मर्जी होता है. Because Yeah. obviously Yeah. बाजू का bully करने का ये नहीं मतलब होता. You just keep taking it, you push back, and then it's like 5 other people that are going to push you back down and Right. whatever. Right. And then you're not good at studies as well. So your teachers Mhm. are obviously going to look at you and be like, troublemaker है. Even though अगर तुम हाँ. हर problem को segregate करके देखोगे, you would actually find out that there are I so know. many Yeah. different things happening at the same time. There are a lot of factors contributing about you know, this person's behavior. लेकिन Mhm. आप उसको, it's just easy to paint it, you know, with one Right. brush वाला हिसाब किताब है. So they Correct. would just they would presume that I was a troubled kid Mhm. and I was distracted. And there's a reason why I was distracted, but it is what it is. Yeah. moved to a different school, Al Fajr International. It was also actually started off by Hyderabadi Indians. Then it was Mhm. bought over by some Arab person. तो उन्होंने start किया था Hyderabadi Indians, and it was a really nice school. And again, bullied there as well. पर Mhm. वहाँ पर I actually found a voice. I was Right. I could I could push back and still stand tall. So I mean, it was hard being there too, Mhm. but it wasn't all bad. वो हिसाब किताब. Yeah. You kind of like learn to, you know, just accept it. And
even though it shouldn't be something that you should accept. But जब आपके circumstances ऐसे, what are you to do? You've got to make peace with Exactly. the situation on some level. You've got to और फिर understand कहीं ना कि कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये है कि अच्छा पिछले स्कूल में भी आई वाज पॉइंटेड आउट टू बी द रॉन्ग पर्सन, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग. So, kind of you try and take a stand for your own self and do whatever is in your own capacity to deal with the situation. वो ही हो जाता है ना. It's like, you know what, if you don't care then we don't care वाला scene, and Correct, correct. you're like बस ठीक है, if the world's gonna burn, I'm gonna, it's like, I'll make sure that I'm the one that lights the match. Lights the match. Nah, वो, never that Yeah, extreme. I was never yeah, a yeah. troublemaker. No, never was I the class clown. क्योंकि क्लास Hmm. क्लाउन्स होते हैं अक्सर जो ट्रबल मेकर्स, बाज़ माने जाते Right, हैं. I was on the right. other hand was, would give out suggestions and stuff, and Mm-hmm. people would be like, why are you saying anything? तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए. Like, नीच Yeah, समझते yeah. हुए. And there were so many factors to it. लेकिन the important thing was कि वो जो क्या कहते हैं अपना जो मसले थे और जो problems थे, that did kind of insecurities पैदा की, and then Mm-hmm. I got over them with time, Mm-hmm. and Mm-hmm. that helps me today to write. That's Right. one of the things I have turned into fuel. So, it's Mm-hmm. like turning the pain into power. Yeah, jo marzi keh lo. I mean, there were Mm-hmm. like Yeah, yeah. taglines saw hain, but it doesn't make any, Right. it doesn't do justice to the fact ke jo aapke experiences hain, they would become fuel to anything that you do in the future. Mm-hmm. The Mm-hmm. 34-year-old me can clearly tell this to you right now. Jo, whatever you're experiencing today, Mm-hmm. that would be a big part of what you are tomorrow. For sure. Yeah, And I and completely agree to this. I mean, good or bad, all experiences are as important because oh otherwise, yeah, मतलब अगर definitely. आप सब हटा दोगे, कुछ भी हटा दोगे, even you remove what do you call it, एक तिनका भी अगर आप हटाओगे अपनी लाइफ का, you would be a completely different person today. ब्लैंड हो जाओगे Because और कुछ नहीं तो. नहीं, it will be something very different, not what you are today at least. Yep, मतलब कुछ agreed. और हटाओगे तो कुछ और आएगा, but then yeah, हाँ I बिल्कुल, agree लेकिन to that. I mean obviously that would definitely not be, आपका you जो है वो कुछ और हो जाएगा. I think Exactly. I think हम थोड़ा सा metaphysical की तरफ जा रहे हैं कि अगर हम we go back Yeah. in time and change a Yeah. few things about ourselves, but you would still not remain you. And Exactly. you is important because you is your present, you is you right now. और Mm-hmm. वो Mm-hmm. चीज holding on to is important. जो हो चुका हुआ है वो definitely आपका past है. Changing it would just change you, the person that you are today. I Completely. think I think I'm a Agreed. much क्या कहते हैं, empathy बहुत आ गई है. I mean, I've always been that person anyway. Mm-hmm. मजे की बात है, Mm-hmm. इतना बुली होता था क्लास में. जो नया लड़का आना है क्लास में, and I could tell, इसका कोई दोस्त बनने नहीं वाला. मैं उसका Mm-hmm. दोस्त बनता था. Right. Somehow that turned me into this one person that would always root for the underdog. Always Yeah. root for the underdog. I am that person. मुझे, it's the same thing with film actors as well. जब तक हीरो कोई नया आया होता है जैसे कि, या हीरोइन होती है, जब तक वो Uh-huh. मेन स्ट्रीम नहीं हो जाती ना, तब तक I'm Yeah. rooting for them. I'm like, हाँ यार, what, नहीं इसकी Yeah. फिल्म देखनी है और किसी की देखो ना देखो, तो इसकी Yeah. देखनी Yeah. है. वो फेमस है, I'm like, Yeah. ठीक है अब तुम्हारे फैन बहुत हो गए, अब वो देखते रहेंगे तुम्हारी. लेकिन the fact is कि I always root for the underdog, and that Yeah. kind of like, because I have been the underdog all this time Yeah. for like a good few years. By good few years, I'm till the age of 28 or 29. Mm-hmm. I just didn't know what I was good at. The problem Mm-hmm. ये थी, I was trying really hard to fit in everywhere. Right. Trying to see कि इधर भी fit हो जाए, इधर भी fit हो जाए. And वो insecurity school से निकली थी. Mm-hmm. उस एज में जो चीज आपको affect करती थी, stick with you, right? Of course. It becomes a part of your essence उस तरीके से. And I would try so hard to fit into this, fit into that, fit into this. Most times Mm-hmm. I was this like jack of all trades वाला scene था. हर जगह fit हो रहे. Yeah. Master of none. Clearly I was a master of none Right. because I kept thinking, I was like, okay, I'm okay with this, I could do this, I could do that. मैं अच्छा थोड़ा बहुत गा भी लेता, but what am I actually good at? That मुझे बेफिक्र होके, I would be like, you know what, yeah, this is where I excel. And Yeah. I mean, for me that was hard to find out till it took took me 28, 29 years of my life. But when I got there, I was Right. like, okay, so I write songs. I write Yeah. actually. That's Yeah. one thing that powers everything that I do. So मेरे जो कंटेंट के पीछे, कंटेंट क्या है, 3-4 गाने हैं, 3-4 नहीं ज्यादा नहीं, गाने हैं, of course. पर बने Yeah. at the moment YouTube के ऊपर 3 गाने हैं. पर for them वो मेरे लिए important क्या चीज है, मेरा writing और music का हिसाब किताब. And
I don't know any musical instruments. I only know like four chords on the ukulele, and I know that Mm-hmm. there are a bunch of songs that are based on those chords. So Right. I'm like, I just shuffle them about और But थोड़ा then सा कर you लेता हूँ. have the ear for it. You understand मैं आपको वही बताने music. लगा हूँ. For me, music started off from church. तो Mm-hmm. I was part of this whole क्या कहते हैं अच्छा मजे की बात है मेरा चर्च से भी बड़ी जुड़ा हुआ ये चीज़ है. क्या कहते हैं चर्च के प्लेस में they used to make me the angel because it had more lines to it and I was the Uh-huh. most confident kid back then to say all this like और वही Uh-huh. lines होती थी and for 5 years 6 years straight I was the angel. So I'm यही Right. angel Mary के पास जा रहा है यही angel Joseph के पास जा रहा है. It came to a point like after the first 2 years कि प्रैक्टिसेस होनी होती थी और प्रैक्टिस पे मुझे भी बुलाया हुआ क्योंकि प्रैक्टिसेस होनी है ना प्ले होना है हाँ क्रिसमस प्ले हाँ. होना है तो प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड दे बी लाइक उसको आती है लाइनें इट्स लाइक सुना दो यार एक दफा जस्ट सो आई एम श्योर यू नो योर Just लाइंस इट्स checking. लाइक Yeah. इट्स लाइक ओके फाइन ठीक है इसको आती है चलो ठीक है बस तुम वहां खड़े हो जाओ प्लीज लाइंस बोल दो जब तक उसको वो बाकी फिर बच्चों को दूसरों को सिखा रहे हैं प्लीज लाइन Mhm. बोलो ऐसे बोलना ये करना वो करना और मेरे लिए वो इट Yeah. बिकेम सो नेचुरल. Singing on the other hand as well. चर्च में वैसे आप रेगुलर मैस पे आप गाते वगैरह Right. हो ही हो लेकिन उसके अलावा भी चर्च क्या कहते हैं अपना क्रिसमस कैरोल्स पे हम लोगों ने एक दूसरे के घरों पे जाना यूएई की बात है सारी तो हाँ. वहाँ पर एक बड़ी क्या कहते हैं बहुत अच्छी एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी इंडियंस भी थे लेकिन पाकिस्तानी क्रिश्चियन Mhm. कम्युनिटी में हमारी ज़्यादा चर्च हमारा वो था तो इस वजह से तो उधर जाना एक दूसरे के घरों में क्रिसमस कैरोल्स के लिए गाना है हमने ये है क्रिसमस सॉन्ग्स वगैरह तो दिमाग हो चुका हुआ था म्यूजिक को एक्सेप्ट करता था म्यूजिक वाजंट हार्ड to understand Right. or तो एक पॉइंट आ गया था इट बिकेम वेरी फ्लूइड फॉर अस हम लोग के घर में Mhm. गाने ही चलते थे हमारे घर में फिल्में बंद हुई थी फॉर अबाउट 5 or 6 years उसकी रीजन ये थी कि मेरे Mhm. भाई ने मुझे कुत्ता बुला दिया था and my parents were like खत्म my dad was like TV बंद like literally no movies for 5 years right 5-6 years straight हमारे घर में बस रेडियो चलता था Mhm. इंडियन फिल्मों का Okay. तो आप ये देखो एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपने एक सेंस क्या कहते हैं एक सेंस को बिल्कुल जीरो कर दिया है तो मुझे नहीं पता अच्छा यू नो व्हाट ये कौन सा era है जब बाजीगर आई थी अंदाज अपना Okay. अपना आया था वो Yeah. वाला टाइम है हाँ. वो 6-7 साल 6-7 साल ज्यादा बोल रहा हूँ 6 साल 92 हाँ 93 से लेके. और हाँ. हाँ बिल्कुल ये 98 के करीब करीब तक अराउंड दैट टाइम हाँ. ये हाँ. हिसाब किताब सारा कुछ नहीं पता हो क्या रहा है कुछ भी नहीं अखियां मिलाए कभी अखियां वो वाली फिल्म जो होगी मैंने आज तक नहीं हाँ. देखी राजा है आई थिंक राजा है उस फिल्म का नाम अब मुझे I'm पता है not too sure. तो हाँ. वो चीज जब हम लोग वो क्या कहते हैं क्रिश्चियन इंडियन स्कूल में होते थे शोवर्ड एकेडमी में होते थे वहां पर मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं भी स्कूल के प्लेस में करूं माय सिस्टर हाँ. वाज लाइक शी वाज लाइक दिस रियली रियली बिग स्टार एट द स्कूल बिकॉज वो प्लेस में Mhm. भी बहुत अच्छी थी वो येलो हाउस की कैप्टन भी थी अच्छा, she is और like over performing और एकदम ओवर high परफॉर्मर standard set कर रही है आपके लिए. सेट कर रही है मेरी बारी आनी एंड इट्स लाइक हाँ. मैं इतना बुरा था एजुकेशन मैं पेरेंट्स वर लाइक ना पेरेंट्स को छोड़ दो माय टीचर्स वर लाइक दे वुडंट इवन चूज मैं Oh. आई वुड गेट रन ओवर लाइक दिस मुझे अभी भी याद है कि एक प्ले था स्कूल का प्रोग्राम होता है एनुअल डे फंक्शन हुआ था एंड Mhm. उसमें ना सारे अच्छा ये इसी का ही है आई थिंक इट वाज लाइक थर्ड फोर्थ ग्रेड ही था एंड दिस वाज द लास्ट ईयर आई वाज एट दैट स्कूल not knowing this is my last year of school Yeah. उधर I was just Mhm. attending this and everything and वो सारे कर रहे थे वो गाना था रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है उस पे कर रहे थे सारे and these were my classmates Mhm. and I asked to be part of it and nobody chose me for it like I Yeah. just don't even remember fourth grade के बच्चे को क्या पता कि क्यों नहीं मुझे choose किया and I'm 34 Right. for God's sake तो अब तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि उनके क्या reactions थे या कुछ I Yeah. remember कि मैं उधर क्या कहते हैं खड़ा हुआ हूँ and I'm like ये मुझे क्यों नहीं ले रहे like मुझे क्यों नहीं लिया Yeah. and I'm like The feeling of question being rejection left of out not being. rejection Yeah. बिल्कुल and I'm like पता नहीं इनका क्या था मुझे क्यों नहीं like you know and you start questioning yourself एंड आपका दिमाग वही सारी चीजें आपको बताता है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हो वो चीजें शायद सच ना हो बट योर ब्रेन टेल्स यू कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम ऐसे हो कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज कम है इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो yeah यू नो true बिकॉज टू यू दे आर परफेक्ट दे आर बिल्कुल डूइंग दिस थिंग दैट यू वांट टू डू and हाउ कैन दे and बी फ्लॉड yeah or and your mind is making sense of this it's like you know what there is या only या one reasonable answer to all of this और एक ही या you know एक ही चीज है जो इधर हो रही है तुम्हारे में ये प्रॉब्लम्स है इस वजह या से ये प्रॉब्लम है आई थिंक सेल्फ एवेल्युएट करना एक छोटे बच्चे के लिए जरूरी नहीं होता
लेकिन उन Yeah. एजेस में आप स्पेशली ऐसे मोमेंट्स आपके दिमाग पे आपको खुद को एवेल्युएट करने पे मजबूर कर देते हैं. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट्स नॉट द और वो बेस्ट थिंग, और क्योंकि वो आप कच्ची अपनी उम्र का कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है और ना. वो सेल्फ इमेज और इतना लो हो चुका होता है कि आपका भाई आई It आई it थिंक takes a lot of effort. जैसे आप बोल रहे थे, it took you like 28-29 years to actually get over it, and मैं आपको it is बता a रहा हूँ constant active work. And जबकि जो चीज जो डैमेज हुआ होता है वो पैसिवली हो चुका होता है. उसके पैसिव लिए कोई एक्टिव पैसिव वर्क नहीं चाहिए होता. इट्स बिकम पार्ट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन नाउ. वो अब या. वैसे ही है. वो बिल्डिंग को कोई छेड़ नहीं सकता. जो हाँ. आर्किटेक्ट्स थे वो कर गए हैं और उनके पास राइट्स हैं राइट. कि वो और अब वो कोई भी बदल नहीं सकता. वो चीज हो या. जाती है या. कि या. वो आर्किटेक्ट्स भी मर गए हुए हैं, वो इमोर्टलाइज हो गए हुए हैं, अब नहीं छेड़ आई सकते. नो. ये लैंडमार्क्स बन गए. या. लैंडमार्क्स या. लिटिल माइलस्टोन्स बन गए. आई कैन एक्चुअली imagine myself feeling the way that I did. I teared up या. that day. या. 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 और मैं easily and I just walked away from there. मैं पीछे, अच्छा मजे की बात है, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ हूँ. Like बहुत बड़ा हॉल है, like फैमिलियां बैठी हुई हैं, chairs हैं, like all the way at the back, and I'm like अच्छा अच्छा, and I like teared up and I left and shit. पर हाँ, तो I mean like in the end, you know, एक realization होगी कि ये चीज नहीं is those were one of the reasons why I wanted to be an actor. तो मेरी दो तरीके से मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है into thinking that I want to be an actor. और मैं 28-29 की एज तक मैं अपनी म्यूजिकल सेंस को सप्रेस करता रहा. आई कुड, मैं चलता फिरता. अब मेरी ये बात है, सिंस आई डिडंट नो हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं छोटी एज में अपने डैड को बोला, मैं डैड आई वुड लाइक टू, एंड दिस इज अगेन इन द 4th grade, 3rd 4th 5th grade. I was like, I want to learn how to play the guitar. My father was like, पहली चीज थी कि guitar lessons were as expensive as my school fee, as expensive as that. And my father was like, sorry beta, we can't afford it. मेरे पेरेंट्स ने एक काम किया था, they made sure that we went to good schools. राइट. उन्होंने हमें नॉर्मल स्कूल्स, यू नो, नॉर्मल पाकिस्तानी या नॉर्मल वाले इंडियन स्कूल्स में नहीं डाले थे. वो put us in like really good schools राइट. कि राइट. एजुकेशन के पास होगी, you know, कुछ ना कुछ राइट. कर ही जाएंगे जिंदगी में आगे. या. बिकॉज जिस जगह से हम पाकिस्तान में, यू नो, पाकिस्तान में जो माहौल था बैक व्हेन माय पेरेंट्स लेफ्ट पाकिस्तान इन द 70s, थिंग्स, एक्सट्रीमिज्म उस वक्त एकदम से आया था. And राइट. when they left the country, they left it in a place जहाँ पर बहुत बुरा हालात थे Christians के लिए. Extremists were like, एकदम से आया था extremism उधर, और उसको तूल में ली थी, and it just grew. And my parents kind of like left around that time. So for them, us going back to Pakistan was a scary thought. And the only Right. reason, the only way that they actually felt if we ever need to go back to Pakistan, education होगी तो इनका कुछ होगा, वरना नहीं होगा. This is why my parents would never let me go into music. Makes sense for them. Yeah. हाँ, उनको ये fundamentally education was the only thing that could make lives better. Absolutely. और अभी भी यही सोचा And जाता because है. I think education is the only thing that helped them move out of a situation that wasn't really safe or pleasant. Absolutely, and this is the only reason why they're like, you know what, आप करें. तो उसके बाद यूए में उधर ही बड़ा हुआ, नए स्कूल में. स्कूल खत्म हुआ है, आई फाउंड माई बेस्ट फ्रेंड्स. स्कूल के आखिरी साल में Yeah. मेरे पुराने स्कूल का लड़का मेरे साथ आया, फहद था उसका नाम. And we kind of like, because I knew from the other school, I'm like, हाँ तुम यहाँ क्या कर सकते, हाँ मैं भी इधर आ गया, blah 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 blah, इधर उधर. And then we got really good, and school end हो गया. स्कूल एंड हो गया, हम लोग एक और दोस्त को मिले, हम उसी के एरिया में रहता था, हम लोगों ने घूमना शुरू कर दिया. उसी के एरिया में एक और दोस्त मिला, उसका भी नाम फहद. So I had two Fahads and Daud, right? तो हम लोग उसी एरिया के अंदर, we were rock stars. The reason we were rock stars was Fahad, हम लोग 16 साल के थे, and Fahad जो तीसरा आया था, he was 18. उसको लाइसेंस मिल चुका हुआ था. तो हम लोगों ने तो गाड़ी थी. हाँ, गाड़ी उसके पास नहीं थी, गाड़ी हमें से किसी के पास नहीं थी. लेकिन जो हमारा दूसरा फहद था, he was well off. जो मेरा दोस्त पहले बना था, मेरा क्लासमेट वाला फहद, he was well off. तो हम लोगों ने कैसे भी करके, मैंने 10 करने दिरहम, तो उसने 90 दिरहम्स करके ले आने. 100 की गाड़ी रेंट पे निकलती, 100 दिरहम्स में गाड़ी रेंट पे निकलती है. रेंट पे गाड़ी निकाल रहे और हम फिर रहे. दिस इज व्हाई वी वर रॉक स्टार्स. दूसरी रीजन ये थी, जो नया फहद आया था, जो ड्राइवर फहद था, 18-year-old फहद, ओल्डर फहद was अच्छा लंबा, वो हाइट में लंबा था, तो उसको लंबू बुलाएंगे, और दूसरे का नाम हमने चिकना रखा होता क्योंकि वो शेव ज्यादा करता था. Of course. No thought process this suit. Yes. बिल्कुल. तो ना चिकने को चिकने ने पैसों का इंतजाम करना, लंबे ने ड्राइविंग करनी है, और मैंने एंटरटेनमेंट का काम, मैंने सीडियां तैयार करनी है गाने के लिए, ट्रिप्स के लिए. तो हम लोगों ने, तो हमारा ये सीन होता था.
तो उधर हम लोग, मैं और जो लंबू फाता भी, सिंस ही यूज्ड टू सिंग, गाना शुरू किया, वी यूज्ड टू सिंग। फिर हमें कोई भी गिटारिस्ट मिलता, हमने उसके साथ, आदत उन दिनों में आया हुआ था, पाकिस्तानी रॉक सीन अभी स्टार्ट हुआ था। ओह मजे Right. की बात है, आई हैव एक्चुअली मेट फवाद खान इस बार, दैट्स Oh, अनदर स्टोरी। वो आ रही है तो हम लोगों ने भाई ऐसे करना है उधर। पाकिस्तान दुबई में अक्सर एक होता this है दुबई Fawad शॉपिंग Khan is फेस्टिवल। such a phenomena. Why I don't know. You just named and my stomach went like, oh. हाँ जी, एक चढ़ने होने शरीर दिखाए, मुझे लगता है मुझे खाने की जरूरत पड़ जानी है। ना मैं बता रहा हूँ Yes. हुआ क्या कि Yeah. ना, वो उस वक्त रॉक सीन चला है, तो हाँ. उस वक्त हम लोग जो भी म्यूजिक आ रहा था, हम लोग लाइक, आई मीन आई वाज द म्यूजिकल पर्सन, तो मैं डीवीडियां बना रहा होता था, सीडीज बना, सॉरी डीवीडीज नहीं, सीडीज बना रहा होता, बर्न कर रहा होता था, लाइक हमारे हाँ. गाड़ी के लिए, ट्रिप्स के लिए, बेस वाले गाने, Right. फिर पाकिस्तानी गाने, फिर इंडियन गाने, इस पे ऐसे मिक्स। तो क्या कहते हैं, अपना मिक्स टेप वाला बंदा मैं था। तो हुआ ये कि जो क्या कहते हैं, मैं और फहद ने, हम लोगों ने प्रैक्टिस करना, हम लोगों ने जैमिंग करनी लोगों के साथ, कोई गिटार्स मिल गया उसके साथ, ये गाना आता है आपको, हम लोग गा रहे हैं Hmm. वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर म्यूजिकल वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा ना क्या कहते हैं, रिफाइन होना Amplify शुरू हुआ होगा. मेरे, हाँ. हाँ Refine. बिल्कुल, वो Yeah. एप्टीट्यूड जो था ना अंदर ही, हाँ. वो थोड़ा सा अब ऊपर को आना शुरू है, टुवर्ड्स द सरफेस। उधर हमारे यहाँ दुबई में होता था दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, वो हर साल होता है, अभी भी होता है, Yeah. सो इट्स अभी भी रियली होता है. बिग। Right. हाँ, सो इट्स रियली बिग। तो वहां पर आता है एक बना हुआ है ग्लोबल विलेज करके एक जगह Mm-hmm. है, एंड वहां पर उन्होंने हर कल्चर की, हर कंट्री की चीजें रखी हुई हैं। और प्रॉपर जाओ, अगर आप इंडिया वाले में चले जाओ तो ऐसा ताजमहल की शेप बाहर बनी हुई है, अंदर हाँ. घुसते हो हाँ. हाँ. तो इंडियन छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, Right. हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह चल रहे हैं, म्यूजिक वाली दुकानें हैं, बस सारे कुछ वही सीन है। हाँ. वहां पर एक ना परफॉर्मेंस एरिया भी बनाया हुआ है, अरीना टाइप बनाया हुआ था तब उन्होंने, वहां पर हुआ रॉक बैंड्स का सारे। तब फुआद वाज इन वन ऑफ द रॉक बैंड्स इन पाकिस्तान, ईपी था उसका नाम, एंटिटी पैराडाइम। तो हाँ. एंटिटी पैराडाइम का वहां पर था, उस दिन जल भी आया हुआ है, सारे आए हुए, लाइक ऑल, आतिफ को छोड़ के सारे आए हुए। हाँ. खैर, आतिफ वाज अ होल डिफरेंट थिंग। I think by that time, if I'm not wrong, Atif had left Jal. आतिफ had left Jal, yes he had। Yeah. तो Fawad, नहीं, Farhan गौहर, Saeed, Farhan Saeed replaced Farhan him. Saeed replaced him. Yeah. Was brought in, not replaced Yeah. him, but Yeah. brought in. Yeah. I'm not gonna Yeah. like इतना बिस नहीं करूंगा आतिफ को, पर हाँ नहीं he was नहीं, brought in। अरे I वो just गया meant है, कि आतिफ जगह नहीं था, खाली हुई है। फरहान था. हाँ हाँ अब हाँ, मतलब बिल्कुल इतना. बिल्कुल, नहीं Yeah. नहीं, मैं अपने वर्ड्स को Yeah. फिर से रीअसेस कर रहा हूँ कि they didn't replace him, he left, Yeah. और Yeah. फिर Of they course. brought in Farhan Saeed। Yeah. Yeah. तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, अपना वो कॉन्सर्ट अटेंड किया। कॉन्सर्ट, मेरे जो फेवरेट बैंड्स थे 3-4 वो एंड में आ रहे थे, रुके रुके रुके, मेरे भाई और मेरे दोस्त कह रहे चलो चले, एंड ऑब्वियसली मैं, नहीं Yeah. कैसे, लाइक हाँ. मैं इनको देखने आया, मैं पागल हूँ। और रात के 2 बज गए हैं, और हम लोगों ने, Oh. अच्छा हम दूसरे, अच्छा मैं अबू धाबी में पैदा हुआ हूँ, पर हम लोग दुबई हाँ. आए हुए हैं, सो दिस इज अबाउट 2 hours ड्राइव फ्रॉम देयर। Right. तो हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग तो कैसे लेट भी करोगे हो यार, गया है. Yeah. लेट हो रहा है भाई, हमें जाना है वापस घर। हाँ. I'm like, हाँ. नहीं भाई ये क्या बात हुई, कैसे भी करके आधा घंटा खींचा, तो निकल गए। निकल रहे, अभी ग्लोबल विलेज के हम लोग, इतना बड़ा था कि जिस जगह पे कॉन्सर्ट हो रहा था, उधर से आपको अपनी गाड़ी के पार्किंग एंट्रेंस से निकल तक भी पहुंचना ना, जहां से आप निकलते हो, एग्जिट करते हो हम्म. पूरी जगह को, वो हाँ. लिटरली 6-7 मिनट्स का वॉक से ज्यादा था। आई एम लाइक लिटरली लाइक ड्रैगिंग माई फीट, आई एम लाइक मैंने नहीं जाना यार, ये क्या है यार। तो मेरे दोस्त Yeah. कुछ पहले ही आगे निकल गए, मेरा भाई भी निकल आपको गया ऐसा हुआ लग है। रहा है ना कि कुछ हो जाए कि आई जस्ट गेट टू स्टे. हाँ, तो मैं रुका हुआ, नहीं यार। तो ना वो सारे चले गए, और मैं पता नहीं कोई बोतल शोतल लेने के लिए खड़ा हुआ। हाँ. और जाहिर सी बात है, कॉन्सर्ट है, आपकी आवाज बैठ जाती है, बिकॉज यू आर लाइक हाँ. सिंगिंग ऑफ विद कोर्स. या. दीज या. पीपल, और ये गाने आपको सारे आते हैं, एंड यू आर लाइक हाँ. नहीं यार ये क्या है। और मैं उधर खड़ा हूँ, तो उधर से लड़के ना 4-5 गुजरे मेरे पास से, एंड आई एम लाइक, मैंने उनको देखा, और मैंने उनमें से 2 बंदों को पहचाना। तो ईपी बैंड गुजर रहा है, ईपी गुजर रहा है, या. एंड फुआद था उनमें, राइट, एंड आई एम लाइक, अब मुझे उसका नाम नहीं पता था फुआद खान का, सो आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, वो रुकता है, और जाहिर सी बात उसकी बड़ी आवाज है, यस ऐसे करके, आई एम लाइक, आर यू द वोकलिस्ट फॉर ईपी, कहता है यस। मैं कहा तेरी खैर, ये क्या हो गया, ये तो खुदा की तरफ से मेरी ऊपर बरकत हुई है। और मेरे दोस्त चले गए हैं, वो कोई लिटरली 1 किलोमीटर हाँ. दूर है मुझसे, हाँ. और मेरी इतनी आवाज बैठी, मैं उनको बुला नहीं पा रहा। आई थिंक दिस गाय वुड एक्चुअली remember me or something, because this is me, come here, I'm like Fahad,
And then they're like, oh नहीं यार, चल हम जा रहे हैं. Like they're like, go, आजा बस जा रहे हैं. I'm like, dude इधर आओ. And they're like, नहीं, because literally मैं सारी रात से I'm like, नहीं हमने जाना. और वो कह रहे कि तुमने चलो, अब वो तंग आ चलो, चुके हुए थे, अब नहीं रुक रहे थे वो. मैंने कहा क्या हुआ? It came to a point where I started stomping my feet. 18-year-old, 17, 18-year-old stomping their feet. इधर आओ. To the point. Lovely. Like मेरा भाई भी उधर. It's like यार पता नहीं क्या रौला है इसका मसला क्या है? They were like, literally they walked back. मैंने उनको रोक के रखा क्योंकि उनके पास कैमरा था. मुझे फोटो खिंचानी थी. वो आए हैं. मैंने कहा फहद ये ईपी का वो है, क्या कहते हैं, अच्छा हमारे पास भी फहद था ना एक. हाँ तो मैंने कहा फहद यहाँ पर ये ईपी का वो, तो ओ हाँ, फिर सबने हेलो हाय कैसे हैं आप, ठीक ठाक, ब्ला 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 ब्ला. सबको तब अच्छा लग रहा हूँ मैं. तो फिर हम लोगों ने फोटो खिंचाई. और फिर मैंने कहा, मैंने फिर गालियां निकालनी शुरू. मैं कहा तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने तुम्हें कहा. मैं अच्छा मैं फहद के सामने गालियां भी निकाल रहा हूँ उन्हें, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर पहुंचे इसी वक्त. तो वो लोग भी मेरी बात ना सुने. ओए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, it was embarrassing, but for me that moment was like नहीं, हरिहरन के साथ एक दफा हो चुका है मेरे साथ, अब नहीं होगा. अच्छा आवाज तब भी नहीं निकल रही थी, आवाज आज भी नहीं निकल रही. मसला वही है, मौके बदल गए, बंदे बदल गए, रूप बदल गया, पर काम वो हुआ है मेरे साथ. फिर वो आए, फिर आपको देखने मिली परफॉर्मेंस की? नहीं, मुझे ईपी की परफॉर्मेंस नहीं मिल सकी, but I met them in person. So that was amazing. That was the next best thing. I'm like ठीक है कोई नहीं, तो at least we met you in person. फोटो हो गई है. So बल्कि फोटो, अच्छा कॉल लड़का था हमारे साथ उस दिन, उस कॉन्सर्ट पे आया था, उसके साथ हम बातचीत नहीं करते, वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो बुरा बंदा है. वो गंदा बच्चा है. तो ना तो वो ना हुआ ये कि उसके पास उसने वो क्या कहते पिक्चर्स की हुई थी. तो उससे हमने उसे कहा कि पिक्चर्स रख ले, हमें नेगेटिव्स देते. वो नेगेटिव मेरे पास पड़ी हुई है. मैंने नेगेटिव के साथ एक दिन मैंने देखा, मेरे को वही, ये तो वही पिक्चर है. मैंने अपने भाई को बोला, मेरे भाई ने बोला 1 मिनट वेट कर. अपने फोन के अंदर से ना उसने वो ऐप को ही ढूंढी, ऐप से आप कैमरा के साथ करो तो एक माइल्ड सी पिक्चर बन जाती है उसकी. तो वो की, तो मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे दोस्त हम सारे खड़े हुए ऐसे, और वो क्या कहते हैं फवाद खान इस करके स्माइल करके ऐसे करके. हाँ तो वो पिक्चर अभी भी पड़ी हुई है, पर नेगेटिव पड़ी हुई, पिक्चर्स नहीं पड़ी हुई. पर हाँ, so that was, तो बंदा is a phenomena. वो definitely phenomena बन चुका हुआ है. I think it's more to do with everything that's going on with him. It's not the fact that he only looks good. He's got an amazing voice, and that just वो पूरा वो कर लेता है. वरना good looking तो बंदे तो हर जगह है. I mean इस कैमरे, इस स्क्रीन को ही देख लो, ये बहुत अच्छा गुड लुकिंग बंदा इधर बैठा हुआ है. लेकिन you know, oh yeah, वो tell me about stabilizer. that. Going back to Pakistan at 19. Oh yes. उससे पहले आपने विजिट तो की होगी. विजिट्स करते थे, स्पेशली जब हमारी इंडियन फिल्में बंद हुई थी, हम लोग पाकिस्तान जाना, तो हमारे कजन से इंडियन फिल्म लगा दी. हमारे डैड मॉम के बाहर निकले हुए घर से, हम लोगों ने ना फिल्म देख रहे अच्छे से, हमें पता ही नहीं लग रहा डैड मॉम ने आ जाना. जैसे एक बंदे ने डैड मॉम को देखा ना, आ गए तीनों बहन भाई बेड पे आंखें बंद सो रहे कि भाई ये सारी फिल्में देख रहे हैं, हम तो सो रहे. अब मेरे मामू ने आना, मेरे डैड के साथ लाइक अच्छा चलो चले. उनको पता था हमारी फिल्में बंद है, तो उन्होंने मेरे डैड को ले जाने. डैड को पता भी है इनके साथ मिलके देख रहे हैं. तो हम लोगों ने पाकिस्तान जब मैं आया, I was like, जाहिर सी बात है कल्चर शॉक है. I could speak the language, but I couldn't speak it like how people would speak it in Pakistan. और मैं आया भी हैदराबाद, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है वहाँ पर, तो वहाँ का जो है हिसाब किताब बड़ा डिफरेंट है. उधर की बोली भी डिफरेंट है. And you know they would be like you know I would say something and they'd be like भाई आप कहाँ से हो? और हमें सिखाया गया था you're not supposed to tell that you're not from around here, because if you tell that to people they're going to take advantage of you, and obviously they would, clearly they would. पर हमें बड़ा सही, हम लोगों ने बोल देना इस्लामाबाद. नहीं पर आप इस्लामाबाद जैसे जाए, कराची नजदीक था, तो कराची का बोलते, तो कराची का उनको पता नहीं आप कराची के नहीं हो, इस्लामाबाद का कह दो तो शायद बच्चा तो देखता. हमने इस्लामाबाद किया कि बड़ी देर तक चलाता रहा मैं वो. फिर बात ये थी कि लुक भी डिफरेंट थी. अच्छा मजे की बात है, मैं अच्छा मैं 19 की एज में बॉल्डनेस मुझे स्टार्ट हो गई. वो ये हुआ कि मैं पाकिस्तान टेंट करके पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके बाल ही नहीं आए. हाँ जी, तो अब दाढ़ी भी रखी हुई है, टेंट भी है. They used to think I was Didn't Arab. expect that. Yes, वही ना, ऐसे वो क्या ट्रैजेक्टरी ऐसी एकदम से चेंज हो गई. तो हुआ ये कि उन लोगों ने सोचना मैं अरब हूँ बड़ी देर.
और फिर मैंने जिस तरीके से बात करनी, वो वाकई उनको अरब लगना। फॉर हाँ सम रीजन दे वर गुड एट पिकिंग अप, कि आपके एक्सेंट से पता लग जाता है कि नहीं नहीं आप इस्लामाबाद के भी नहीं, आप लाहौर के भी नहीं, आप इधर, बिकॉज हमारी वाकई एक एक्सेंट था ही नहीं। उसका प्रॉब्लम या ये थी कि हम इंडियंस के साथ भी घूमते फिरते थे, क्या कहते हाँ हैं, स्पेशली जो फिल्मी उर्दू है, ये फिल्मी या हिंदी है, हाँ वो जो चलती, एक तो फिल्में वो देखनी, फिर हमारे इंडियन दोस्त हैं, फिर हमारे पाकिस्तानी लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के दोस्त हैं। अब सबकी मिली जुली एक चीज बनी हुई है, वो है कुछ हमारी तो हाँ, लैंग्वेज। कुछ फ्यूजन है एक अलग और वो सा। क्लियरली वो पैक करते थे हाँ उस चीज को। एंड दे वुड राइट बी लाइक आप यहाँ के नहीं हो, ये है वो है। फिर अजीब अजीब कहानियां पूछनी, हम वहां कैसे जाएंगे, जिसको पता लग जाता। फिर हाँ फिर एक और कहानी थी, ये वरना किसी को पता लग भी जाए ना कि आप दुबई से हो, ये नहीं आपने बताना कि आपके माँ बाप यहाँ नहीं है, आपके माँ बाप यूके में। You do understand, right? These are like या red flags. It's like, please come abduct me and ask for money, extort money out of my parents. आई वो नो सीन था। या So I mean, like, बिकॉज उनको तो नहीं पता ना कि उनके हो हिसाब से तो अगर आपने मुल्क छोड़ दिया देन यू आर रिच, यू आर फिल्थी रिच। यस, ये वहां पर पेड़ों पे लग रहे थे, ऑफ आपने कोर्स आपको अपना ट्री छोड़ना पड़ा, पर आपने उससे पहले इतने सारे आपने पैसे उतार लिए कि यू गुड टू कम। आपने छोड़ा ही इस वजह से क्योंकि आप गुड टू आप बिकॉज यू पाकिस्तान आ यू आर गए। मूविंग टू द नेक्स्ट ट्री इन यूके। हेलो हाँ, वो उधर चले गए, और आप उस दरख्त में से, जो पिछले दरख्त में से जो ट्रीज पे से कुछ थे, वो आप यहाँ ले आए, बिकॉज व्हाई वुड यू कम हाँ हियर अनलेस यू गॉट कैश आई टू नो लाइक चिल एंड डू योर थिंग। तो उनके दिमाग में ये था, एंड दे वर लाइक, या बड़ा हमें तैयार किया हुआ था, टू द पॉइंट। अच्छा, फनी थिंग, मैं पाकिस्तान गया हूँ एंड आई डिड नर्सिंग ओवर देयर। ओके हाँ, मैंने पाकिस्तान आके नर्सिंग की, डिड दैट फॉर 3 years in Hyderabad. Amazing time of my life, right? Probably some of the most best friends that I've ever made. बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी अभी भी इतनी हैवी दोस्ती है, और वहाँ पर बने, वहाँ पर नए किस्म के म्यूजिक सीखा, नए किस्म के लोगों से उठना या बैठना, वहाँ जाके पंजाबी बोलनी सीखी, बिकॉज लिटरली हमारे क्लास के अंदर 100 लड़के थे, 100 लड़के में से अप्रोक्सीमेटली 70% जो बंदा था, 70 लड़के इटसेल्फ वे फ्रॉम पंजाब। सो उनको पंजाबी ही आती थी, वो पंजाबी में मजाक करते थे, एंड इट वाज क्रेजी। वहाँ हमने एक दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में जाके पंजाबी सीखी है, एंड फिर पंजाबी आ गई, तो ये है वो है वगैरह। आई मीन कल्चर शॉक तो था, लोग हमें मजाक या करते थे, लोकल जुगते मारते थे, एंड वी वुडंट नो या व्हाट्स द होल जुगत ऑल अबाउट, राइट? वी लाइक, इसका या क्या मतलब है? वो कहते हैं इसको तो मजाक करके हम लोग फंस जाते हैं, इनको मजाक करके फंस जाते हैं, इनको समझाने बैठ हाँ जाओ अब। समझाना पड़ता है। हाँ, कि जी तुम्हारी बेइज्जती हुई है, महसूस करो, हाँ एंड यू बी लाइक बाय दैट टाइम से, अच्छा ओके, oh okay अच्छा and you're ठीक like that wasn't even funny, है। what Yeah, are you talking about? yeah, and I don't feel bad about it. Is it wrong that I don't feel bad about it? वो वाला हिसाब किताब अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए, कि यार, I don't feel bad. Is it like wrong? Like मुझे बिस्ती, क्या कहते हैं, हाँ बिस्ती पसंद है, like वो वाला हिसाब किताब था, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद हम लाहौर आए। लाहौर की जो ट्रांजिशन थी, it was a lot smoother because हम हैदराबाद में रह चुके हुए थे, तो it was just a transition between UAE and Hyderabad, which was hard in the beginning. हाँ मौसम, हम एसीओ के गिजे हुए थे, एसीज वर हाँ द थिंग। हैदराबाद में जहाँ पर आए वहाँ पर एसीज नहीं थे, हमारे क्लासरूम में था बस। I think just the societal change ना, it's ओह very yeah, different हैदराबाद wasn't like in कराची और लाहौर। कराची लाहौर बड़े शहर थे, नहीं हैदराबाद from was, moving from हाँ UAE to हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यूएई से एक छोटे शहर Hyderabad में, हाँ एक छोटे शहर में yeah चले जाना, yeah जहाँ पर तुम अपने जैसे लाइक माइंडेड भी नहीं ढूंढ सकते। डू यू नो, like minded नहीं ढूंढ सकते, there is no freedom, मतलब I don't know, just the fact कि आप रात में नहीं निकल सकते हैं। मैं like आपको बता रहा हूँ, what जिस एरिया में हम लोग रहते थे ना, उस एरिया में अलाउड नहीं था कि आप शॉर्ट्स पहन के बाहर घूम सके। हम लोग oh मजाक yeah करते थे एक दूसरे को, जो भी नए लड़के आते थे, yeah अगर आप शॉर्ट पहन के निकले ना बाहर, तो जितनी जितनी आपकी शॉर्ट है ना, उतने उतने पैर काट देंगे। ये ठीक है, अब फिर वाकई उन्होंने बोला था कि जी yeah शॉर्ट पहन के नहीं फिरने देना हमने, इधर से गए तो हमने आपको निकाल देना इस एरिया में से। वो थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका था, लेकिन yeah वी couldn't do anything क्योंकि हमारा नर्सिंग स्कूल भी उसी एरिया में था। इट वाज कन्वीनियंट हाँ फॉर अस टू वॉक देयर। तो हम डे, अच्छा, तो हम लोगों ने हॉस्टल जब छोड़ा, खुद रहना शुरू कर दिया, मैं और मैं, मेरा भाई, मेरा कजन, हम 3 थे, और फिर हमारा एक और दोस्त नासिर, एक और दोस्त नदब, एंड इट वाज द 5 of us। हम लोग छोड़ के हम लोगों ने खुद से रहना शुरू किया, खुद खाना पकाना शुरू किया। जिस दिन हम अकेले पहली बार शिफ्ट हुए, हमने 21 रोटियां 5 लड़कों ने बनाई, पराठे बनाए, और हाँ दही के साथ और अचार के साथ खा छोड़ी। 21-22 रोजाना बन रही हैं, कभी 25 बन रही हैं, 32 भी हाँ खाए हैं हमने पराठे।
It was that bad. इतनी भूख लगी हुई थी, हॉस्टल में तो कोई हालात ही नहीं होते थे। हाँ मैं पाकिस्तान आया हूँ, कोई 80 समथिंग मेरा वेट था, और like within like 6 months I was at 60 something. मुझे अपनी छोटी बहन की शॉर्ट्स आती थी who's like 7-8 years younger to me. इस yeah लेवल की it's कमजोर एकदम bad से हो गए थे। yeah It was really bad. हमारी माँ ने जब पहली बात देखी, she's like, "अरे मेरे बच्चे, ये हो गया।" But I mean, देखिए, yeah in the end, they knew they couldn't do anything. yeah They knew one of the reasons we did nursing was the fact that it was an easy way to, like, obviously पाकिस्तान से निकला जा सकता है, तो mm-hmm. नर्सेस की बाहर बहुत जरूरत है, आप कर लो, फिर आगे जाके जो दिल में आए करते रहना, वो हिसाब right किताब। right एंड right फॉर अस वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि हम इमिग्रेट mm-hmm. करें। Mm-hmm. पाकिस्तान वाज जस्ट अनदर स्टेशन Mm-hmm. हमारे रास्ते में जो यहाँ Mm-hmm. यूके के लिए आता था। तो again like I told you, हमारे reasons थे why we yeah would yeah never contemplate staying in Pakistan, like, for good mm-hmm. वाला हिसाब किताब। तो right अब हम लोग वहां पर रह रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने अपने बैग्स तक अनपैक नहीं किया, बैगों में से कपड़े निकालने और बैगों में वापस डालने, ये हमारी सोच है। 7 years 7 years हम पाकिस्तान में रहे, आफ्टर दैट इन वन गो बैग्स अनपैक नहीं हुए। oh. यू डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम I ट्राइंग टू feel टेल यू, राइट? very मेंटालिटी जो I'm चल just रही थी। feeling so bad कि like you know just having to had मतलब अभी बात कर रहे हैं उस बारे में, तभी हाँ, आपके लिए नॉर्मल होगा। It wasn't मैं even a struggle back then, I'm sure, मैं because आपको that बता was रहा the हूँ, way of life. But then now हमने you think हमने of it कि या कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग not पैदा having ही a नहीं हुई। sense of home. Yeah, या not having a sense of home. मैं ऐवी नहीं बोलता, जैसे Yeah, जो yeah, तुम्हें क्या कहते हैं, उस दिन को उससे बात हो रही थी हमाद से, आई वाज लाइक, नहीं, वैगाबॉन्ड या क्या कहते हैं, अपने एक जो नोमैड की जिंदगी है वो तुम्हें नहीं पता। इफ यू चूज टू बी, तो उसके दो चीजें होती हैं, या तो आप yeah, खत्म हो गए हो, या तो आप बहुत ज्यादा है, पैसा पीछे रोकड़ा बहुत है कि यू नो व्हाट, hmm. एक्सपीरियंस करना चाहते कुछ नया, यू नो, एंड ऑल दैट। It पर was नहीं, out of necessity. It was out of आउट ऑफ fear. नेसेसिटी ऐसे ही है। और हम Yeah, लोग, इवन दो वी कुड, we actually bought cupboards, ऐसी बात नहीं थी, we had a few things in them, but most of our yeah, stuff was in bags. We never got them out of yeah, the bags, only because we knew we were leaving. We knew we were leaving. We were always in that mindset. और yeah. maybe उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में शायद excel ना भी कर सके हो, क्योंकि हमने sense of belonging ही ना शायद Yeah. पैदा की हो। Maybe it made the transition or made the time in Pakistan that bit easy because you knew you will leave. You will eventually leave. Absolutely. Probably. And Because I'm sure for 19 years, it's not even आप 10-15 साल के हो कि आप transition फिर भी कर सकते हो। 19 years, आप your psyche is pretty much made. I know yeah, the thalamus is not developed and all of that stuff, but it's pretty much there. और वही बात थी, it was really hard for us to transition in the beginning. Yeah, I've always been that kind of person जो कहीं भी adapt कर जाता है, and that's when I yeah, learned कि okay, I've got this knack for adapting to any yeah, mahal and everything, and yeah. I kind of, like, So made peace the with it. transition was that आप लोग पढ़ने आए थे या फिर you couldn't move to UAE, UK with your We couldn't parents? move to UK. I mean, I could, मैं humanitarian statuses पे जा सकता था because I've never lived away from my family, blah blah blah. But the fact was my Okay. brother couldn't, and my parents were like, Oh. listen, do you want to let your brother go alone? And नहीं, yeah, that and I makes was like, sense. no, it Yeah, makes no sense. This is why yeah. मैंने कुर्बानी दी. Where's the camera? नहीं, मैंने yeah, कुर्बानी दी. And I actually, yeah. फिर हम दोनों भाई हम इकट्ठे आ गए यहाँ पर. It made Hmm. sense, and I think that was the best thing that could have happened to me. Only Hmm. because मेरे experiences जिन लोगों से मैं मिला, obviously हम Yeah, जाने के लिए थे for obviously a better life, not because we hated the people in Pakistan. Don't get yeah, me yeah. wrong. After मैं उसके बाद 7 साल पाकिस्तान में रहा हूँ, फिर उसके बाद यूके आए हैं हम लोग. हम लोग ने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की. नर्सिंग के बाद हम लाहौर आए हैं. लाहौर में मेरे भाई, Mm-hmm. he worked as a nurse. My cousin worked as a nurse for 2 years. I just chilled in another country, in another Yeah, city. कुछ भी काम नहीं किया, लोगों से मिल रहे हैं, जैमिंग हो रही है, फिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो yeah. हो रहा है, चिल किया है. आखिरी साल में मैंने थोड़ा सा इधर उधर काम किया है, और फिर हम लोग बैचलर्स करने के लिए नर्सिंग में यूके आ गए Mm-hmm. मेरे पेरेंट्स के पास. Mm-hmm. तो हम वापस आए हैं यहाँ पर, एंड एग्जाम क्या कहते हैं, अपना सारा कुछ किया है, कोर्स पूरा कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी में एंड एवरीथिंग. सो Mm-hmm. I've got my bachelor's in nursing, which is कहीं यूज नहीं हो रहा. पर उसके बाद, Yeah. और उस वक्त जब खत्म होगी नर्सिंग, एंड आई टेल माय डैड, आई एम लाइक, लिसन, मुझे ना ड्रामा स्कूल जाना है. माय फादर इज लाइक, वेट, Mm-hmm. व्हाट, you want to go to drama school? I'm like, yeah. And I got ठीक है.
हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी, सारा कुछ, मुझे रिजेक्शन आ गई। कहते कि तुम्हारी एज, तुम 27 के हो गए, तुमने अब जाके अपने हम्म। करियर बदलना, इट मेक्स नो सेंस। हमें नहीं लगता you're a perfect fit for it, so it is what it is. I did try, they didn't take me, या बट and देन डजंट मेक सेंस यार, मतलब मुझे 100 साल जीना है तो मेरे 1/4 ही तो हुआ है अभी, थ्री हाँ फोर्थ हाँ, आई शुड अभी लेट गो पड़ा हुआ है बिकॉज पीछे। वन आई डिड हाँ, नॉट प्लान इट राइट इन माय 1/4, जिसमें से बिल्कुल, भी half of it I'm not conscious enough to do anything. Like absolutely, it's autopilot और pretty much. बिल्कुल it was autopilot, और somebody else was thinking in the background too at the same time, Yeah, और वही वो चीज क्या कहते हैं, खैर किसी को क्या ट्रांसलेट करके आप जितनी yeah, भी yeah. I एप्लीकेशन think लिख लो। US is that way US education system is much better in these formats. Ki they allow you to switch streams on, यार I've what I've heard. I मैं don't जिस know. एरिया में रह रहा था ना, वहां पर 2 ही ड्रामा स्कूल्स थे, वो प्रेस्टिजियस ड्रामा स्कूल्स थे। दे वुडंट टेक मी, दे वुडंट हैव टेकन मी एनीवेयर ईदर नहीं वे। नहीं, आज आज सोचने पे भी आऊं मैं, बिकॉज उनके यूके में, पास, यूके में जिस नहीं जगह नहीं, में आई एम मैं था। सेइंग दैट वे, नहीं पर यूके का एजुकेशन सिस्टम इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन देसी कल्चर, बिकॉज उन्होंने ही हाँ दिया हुआ है, हमने खुद से हाँ, हमारा वाला हमने बिल्कुल। अबैंडन कर दिया था। उन्हीं हमारा वाला हमारा छाप रहे लो, हैं। हमारा वाला था ही तो वो डिफरेंट था ना, वो क्या कहते हैं, वो yeah, जो थे it हमारे was more of गुरुजीस a थे, guru shishya and शिष्य वाला gurukul type सीन, of a, yeah, ऐसे ही yeah. है। So no, but in US, in America, the education system this way is better because आप कभी भी switch कर सकते हो and they encourage it. हाँ आप हाँ, बिल्कुल 35 बिल्कुल। 35 में आप बोलो कि मेरे को arts करनी है, फिर I want to learn sculpting and do a हाँ degree at sculpting and they'll be like हाँ ठीक है हाँ, करो। कर लो, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हाँ। नहीं। अच्छा, मजे की बात है, मुझे शौक इतना था, एंड आई कुड हैव डन दिस इन लाहौर इजीली। एनसीए हम्म। is like हम्म। Pakistan ka one of the biggest places where you could, like, arts ka Yeah, school hai, and I could have yeah, gone there. I just yeah. it was never a Didn't choice strike. because I was never Yeah. going to stay in Pakistan, right? Made no sense. Hmm. Hmm. तो Hmm. मैं इस वजह से कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने बड़ा लूज भी किया है, just the Hmm. fact कि मेरे पास एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं थी उसकी वजह से। Right. पर Right. maybe being on the move all that time, और वो mindset के Mhm. साथ, it kind of like opened other doors for me. I met people Mhm. along the way जो जिन्होंने एक डिफरेंट अपना रूप दिखाया। I took in that, and obviously उनसे बहुत कुछ सीखा। Same thing here, Mhm. मैं यूके आया हूँ, कंप्लीट किया, ये देखा कि जी मुझे नहीं वो ले रहे। आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान। आई स्टे इन पाकिस्तान Mhm. फॉर अबाउट 4 years, तो 4 साल पाकिस्तान में रहे। तब जाके आई वाज लाइक, अच्छा, नर्सिंग की जॉब ढूंढी है मैंने, and they were like only paying me 5,000 more than what I was getting before I did my bachelor's in the Oh, UK. And I yeah. was like, Yeah. अच्छा, तो मैंने 20-25 लाख की मैंने डिग्री कर छोड़ी है, और तुम मुझे बोल रहे मेरे 5,000 ही बढ़ रहे। मैं भाड़ में जाऊँ, Hmm. मुझे नहीं करना यहाँ काम। Yeah. मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने बोला कि यार यहाँ पर कॉल सेंटर है, यहाँ पर बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं कहा चलो कर लेते हैं ट्राई। मैंने ट्राई किया, Hmm. तो करते कराते वो अच्छे पैसे, लाइक ठीक ठाक अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं हाँ. कर लो, दिस इज द अमाउंट आई वाज एक्सपेक्टिंग, जो मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे यहाँ मिल रही है। और इधर तो कोई फिजिकल लेबर भी नहीं, हफ्ते में 5 दिन काम करता, 2 दिन छुट्टी में मिलती है मुझे। लाइक हाँ. मैं क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। मैंने उधर काम करना शुरू किया, एंड दैट्स Yeah. व्हेन थिंग्स चेंज, राइट? नर्सिंग की जो ऐसे चल रहा था वो ऐसे हो गया, एंड Hmm. देन इट वाज जस्ट मी डूइंग माय थिंग। मेरा भाई, Yeah. he continued with nursing, and वो यूके मूव हो गया। he had to pass a Hmm. few exams, और Hmm. वो Hmm. एग्जाम्स पास करने के बाद he started working as a nurse. I, on the other hand, did not pass those exams either, so that was another reason why I'm not working as a nurse in the UK. But Yeah. uh, But also I didn't want to. So like, clearly I didn't want to. I didn't want it yeah. enough. तो हुआ ये कि मैं फिर उधर वहां पर मुझे एक लड़का मिला। वो लड़का एमी एक दिन ना गिटार बजा रहा, मेरे ना टीम का हिस्सा था वो। तो वो Hmm. उसके साथ बैठ के ना वो कोई गाना ढूंढ रहा है, जिससे कि यार इस गाने के वर्ड्स के, मैं पास से गुजर रहा, एंड आई जस्ट स्टूड बाय हिम, एंड आई एम लाइक इसके ये वर्ड्स हैं। इट्स लाइक, डू यू नो द वर्ड्स? आई एम लाइक, या आई डू। तो वो जो बंदा मेरे टीम का था, तो और ये मैं नया अभी जगह ज्वाइन की है, हाँ. तो लाइक मैं हाँ. कहा मुझे गाना भी आता है। इट्स लाइक ओके, तो मैंने उनके साथ उसी वक्त जैमिंग की। कॉल सेंटर्स में पता नहीं इंडिया में क्या माहौल है, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है कि लोग गिटार्स भी अपने लेके आ रहे होते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो Nice. उन्होंने बड़ा एक अजीब सा हिसाब किताब बनाया हुआ है। दुनिया डिफरेंट होती है। एक प्रॉपर कॉम्पाउंड होता है अपना कॉल हाँ. सेंटर का, अच्छे कॉल सेंटर्स का। उसके अंदर हाँ. जो दुनिया इस जहान की चीज हो रही है वो उधर ही हो रही है, बाहर का बंदा उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। बाहर माहौल जैसा Hmm. मर्जी हो, बहुत अच्छे माहौल है, और कुछों को नहीं अच्छे लगेंगे पर मुझे अच्छा लगता है। हाँ. तो गिटार हाँ. भी आ रहा है, सारा कुछ, तो जैमिंग हल्की सी कर ली। तो वो जो लड़का गिटार बजा रहा है, तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा तुम्हें ये गाना आता है? कहता है
हाँ मुझे ये भी आता है, He's like, तुम्हें ये आता है, and I'm like, yeah, and we kind of like okay, Just clicked. Yeah. clicked. Yeah. उस लड़के का Yeah. नाम हसान था, और Hmm. हसान became this one person जो मेरी म्यूजिकल जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। वो ये है Hmm. कि he was the person जिसके जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया उस वक्त, एंड उसकी वजह से उसका दोस्त था एक कासिम नाम का। कासिम इज सेलिब्रिटी, Mm-hmm. तो ही इज एन एक्चुअल सेलिब्रिटी। हम यू नो बेस्ट स्टाइलिस्ट के अवार्ड्स 3 years इन अ रो जीत चुका हुआ है अभी, 4 years इन अ रो। Nice. तो ही सिंग्स अमेजिंग, बहुत अच्छा गाने वाला है, एंड Mm. उससे मिलना हुआ, और वो क्लासिकल गाता है, एंड आई एम लाइक वाओ। और फिर जैमिंग स्टार्ट होगी, वी जस्ट जैम टू द पॉइंट कि हम लोग लाइक लोग अपने पार्टीज में भी बुलाते थे, Right. अपने घरों की Yeah. पार्टीज में, ये भी नहीं कि जी हाँ. दूसरी पार्टीज हैं, अपने घरों की फैमिली मॉल में बुलाना, हमने हाँ. जैम करना, उधर खा रहे हैं पी रहे हैं, उनकी फैमिलियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, टू दैट पॉइंट। एंड बड़े अच्छे अच्छे Yeah. लोग थे, कदर करते थे, आई गेस, आई मीन यही कह सकते हैं, जो हाँ. एंजॉय करना चाहते थे एक अच्छा और फैमिली माहौल को थोड़ा सा और हम्म. वो कर लिया जाए। तो हाँ, बिकॉज उस वहाँ पे फिर ये होता है ना कि यू लाइक कि अच्छा किसी ने और कोई सजेस्ट कर दिया एंड दे आर सिंगिंग अलोंग एंड बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे वैसा. एग्जैक्टली exactly. या. और वो जो जैमिंग वाला जो क्या कहते हैं, वो जो माहौल है, वो लोग एटमोसफियर वो पसंद करते हैं, सो पीपल वुड हम्म. स्टार्ट या. स्टार्टेड कॉलिंग अस ओवर टू देयर थिंग, और हम लोग या. उनके घरों के प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने गाना प्ले करना, एंड आई मीन ईच वन ऑफ अस वाज डिफरेंट, और हमारे म्यूजिकल टेस्ट भी डिफरेंट थे, वी एक्चुअली अच्छा, हम हसन आल्सो यूज्ड टू सिंग, Hassan also हम्म. sang, उसकी आवाज डिफरेंट थी, मेरी आवाज डिफरेंट थी, कासिम की आवाज डिफरेंट थी, एंड वी वर लाइक जस्ट अमेजिंग टुगेदर। या. हम लोग कवर्स कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल्स कभी कभी कोई नहीं गाया, कवर्स कर रहे हैं, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय होल म्यूजिकल जर्नी, दैट्स वेयर या. मेरी जो You realize रिफाइन, you give importance to music हाँ, apart from और just मैं being रिफाइन an होना actor. शुरू हुआ, जो मेरा प्रॉपर या. रिफाइन हो रहा है काम, एंड इट्स लाइक या. ओके, तो मेरी सिंगिंग रिफाइन हो रही है, ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, ये आउट ऑफ की है, ये चीज़ है, वो है। अगेन आई डोंट नो हाँ. हाउ टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको प्ले करना है तो वो कहती है तुम ऑफ की हो, थोड़ा इधर से हाँ. प्ले करो, और उसने खुद बताना हाँ से प्ले करो, एंड बी लाइक अच्छा हाँ, फिर मैंने गाना है वैसे। तो हाँ. इस तरीके से मुझे क्यूज दे रहा है, हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, वो एक बड़ी मजे की जुगलबंदी सी हमारी बनती थी whenever हम लोग इकट्ठे करते थे, हाँ. हाँ. टू द पॉइंट कि हम लोगों ने इकट्ठे घूमना फिरना, एक बंदे का नाम पूछो तो दोनों बाकी दो साथ ही आते हैं इकट्ठे उनके नाम, टू दैट हाँ. पॉइंट। मेरे पहले भी जो दो दोस्त थे फहद दोनों, उनके साथ भी यही होता हम्म. था, वो कोई बोलता था यार फहद किधर होगा, या वो दाऊद और फहद के साथ होगा, सेम थिंग गोज विद कासिम और या. हसान और दाऊद, इट्स लाइक दाऊद किधर होगा यार, वो हसान कासिम के साथ होगा, और ईदर वन और द अदर। या. या. सो मेरी जो दोस्ती का सीन रहा है ना, लाइक इस किस्म का, they've हम्म. always been in threes for some reason, and या. maybe it's too much dil chahta hai, but that's how things work, that's how things work। या. या. तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा मजे का हिसाब किताब नाइस. right, and that led me to this point। I started writing my own stuff, and it's a shame I only performed 1 or 2 songs with Hassan, but it's a shame कि most of my जो growth हुई है वो मेरी फिर इधर move होने के बाद हुई है, म्यूजिकल क्या कहते हैं लिखने के मामले में, नॉट लाइक द सिंगिंग परस्पेक्टिव। सिंगिंग के मामले में कोई टेंशन नहीं थी, सिंगिंग के मामले में अपन शुरू से ही बहुत अच्छे थे यार, ये तो माइक ही गिर जा रहा है साइडवेज, पर हाँ, या. तो ये सी। तो आप when you came moved to UK, I was saying US, कॉन्टिनेंट बदल यूएस, देना मैंने. हाँ। UK, and then how's life right now? What are you doing? Me, I am actually working as a receptionist and a songwriter and a singer. But huh, I mean, like life right now is uh, during lockdown, it was a little funny. It kind of like got funny in the weird kind of way. My Yeah. wife, she was working from home till she wasn't, and laid off नहीं थी, furlough पे चले गए थे, तो कोई operations चल ही नहीं रहे थे, वो, Right. and uh, we were expecting a child during lockdown, so we've got a lockdown baby. So, Oh. but and it was the most ajeebo-gharib experience of all time. Like you really don't know how to conduct yourself anymore in public, और हाँ. कैसे अब लोगों को गले नहीं मिलते, अब लोगों से हाथ नहीं मिलाते आप, and Yeah. for me, I was never a big hugger or a big shake hand person, unless until बहुत ही खुशी हो रही, heavy, बहुत खुश हो गया मैं, जगह गले लग जाए वो सीन, Yeah. तो Yeah. वरना नहीं, and like literally people had to like जपी डाल, वो हिसाब किताब होता है, तो I mean, like for me, it's okay.
लेकिन there are so many things, बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें change हो गई हैं. And it's like it's impacted us as not just you, I think it's everywhere now. हर कोई बड़ा heavily impact हुआ है इस event की वजह से, if you might call it. Yeah. So being a father, it's a whole new experience in its You're own just way. figuring it out. Yeah. Oh yes, yes. Like I used to have the same issues जब मेरी नई नई शादी हुई थी. The first time it actually hit me that I'm actually married was the time when I had to like किसी बंदे ने phone पे मुझे call किया and he's like जी आप ये product ले लें ये है वो है. And I was like interested. I'm like, you know what? I'll need to talk to my wife. And then it hit me. It's like I can't do this on my own anymore, can I? I need to talk to my wife, and that's when it really hit me. I'm like, ah, Yeah. 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 You had one Nice. thing lucky. जो तुम्हारा अपना था अब वो भी तुम्हारा नहीं रहा तुम अपने नहीं रहे अब तो तुम कुछ दूसरे नहीं किसी है और एंड आफ्टर द बेबी एंड जस्ट लेट द बेबी स्टार्ट टॉकिंग फिर ओ तो यार वो भी नहीं है फिर वो आप दोनों के पास नहीं है नाउ मैं इट्स कहता विद द हूँ बेबी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको फोन ना देखने दूं and हाँ stuff. I'm like, you know what, keep her हाँ away from phones, TV या पे, but she's already kind of like taken over her television. And और मैंने अच्छा टीवी खरीदा भी पिछले दिनों and I'm like पर ये मैंने मेरे लिए लिया दिल में क्या ये तो मैंने मेरे अब लिए इस पे लिया बेबी शार्क चलता है सारा दिन और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा she doesn't necessarily ask for it but my wife does. She's like या नहीं ये उसके लिए अच्छा है. I'm like तुम उसके लिए बात ना करो. She's fine with whatever I watch. आई You नो speak for yourself. And he's like या हाँ पर नहीं. She's like नहीं उसके लिए ये चीजें सीखने वाली होती हैं तो ये ऐसे ही या सीखेगी जब वो देखेगी. I'm like yeah. now you will have a entire new arena of debates and fighting with your wife because of the child जो आपने realize भी नहीं करी होंगी कि इस चीज पे भी इस पे भी लड़ाइयाँ बनती है. होती हैं इस या like इससे पहले I mean I always loved kids. Like मुझे दूसरे के या बच्चे बड़े अच्छे लगने, क्यूट हैं, ये है वो है वगैरह. And you're like वाह यार क्या ही बात हो अपने बच्चे हो कोई चिल नहीं है. देखो कितना मजा आता है उनको उठाया चुम्मियां दी रोए तो माँ को पकड़ा दिया आगे घूम के फिरने चले गए वगैरह यही है ना. तो I आपको तो love लगता है kids, but I am I think I'm smart enough to know कि जब तक दूसरों के होते हैं बहुत प्यारे होते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ ना जब अपने नहीं चाहिए अब ये थैंक्स है कि जब रो रहे हैं तब आपने उन्हें चुप कराना. ये बात याद रखो किसी और ने नहीं कराना. एग्जैक्टली अच्छा मैं बड़ा इन मामलों में I'm like trying to be this parent like या एक different parent बनना चाह रहा हूँ. My wife is like no, she's like everything on her head like नहीं यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, this is good for the child ये है वो. And I'm like listen बच्चे को परेशान नहीं होने देना हमने. बच्चा जो दिल में चाहे करे, गलत कर रहा है गिरने लगा है बचा लेंगे. That's the most important. She's like नहीं ये चीज की सवाल ही क्यों पैदा हो. And I get where she's coming from. या She या wants to protect. I on the other hand would want to be like, you know what, ये तुम्हारा छोटा सा this arena is है, गिरो I फिरो जो मर्जी है. not stereotyping or anything, but I'm around a lot of new parents right now. A lot of my not friends, but वो seniors ही हैं सब मेरे जिनके parents हो रहे हैं, but I'm friends with them. I'm more friends with people older than my age for some reason. You're an So old soul. probably. So I have a lot of new parents around me. और सब stereotypical ना होते हुए भी stereotypically the males have this perspective and the females have that perspective that you're saying. My wife sometimes she's Yeah, like आपको ये चीज अजीब नहीं लगी. I'm like yeah, no ये ठीक थी like yeah, क्यों yeah, लगनी चाहिए थी. And it's like I understand where she's coming from. For her yeah. plus attention, now I've got issues like dyslexia and ADHD Hmm. and stuff. Yeah, Attention is the biggest issue. And like yeah, and I'm gone. I am literally gone. It's like कहीं और हूँ और बच्चा कुछ 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 कर रहा है. And I'm like एक ऐसा भी point था मैंने उसके पैर पकड़ा हुआ था and I was just thinking and my daughter's like trying to go and I'm like जो मर्जी कर जब तक तेरा पैर मेरे हाथ में we're good. I'm like उसने छुड़ा लिया. I'm like अपने मैं you know I snapped back into reality as soon as yeah. अपना पैर छुड़ा. I'm like वापस खींच के ऐसे continue daydream. तो अभी ये हो रहा. Nice. नहीं, it's good. It's great experiences. Oh yeah. और तो ये मैं बताएं what is happiness? happiness is this कि जो कुछ इधर है वही खुशी है जिस चीज को आपने होल्ड किया हुआ है जो आपके और खुशी से होल्ड किया हुआ है. not like you're caged it in or anything. It's like जो खुशी से आपके हाथ के अंदर है और आपने ऐसे हाथ बंद किए प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बस that's it. वो happiness है. It's never a cage. Nice.
वही Nice. चीज है, मुझे और कोई चीज समझानी नहीं आती, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें राइट नाउ आई मीन लाइक दिस गुड मूड, और मैं Mm-hmm. प्रोडोमिनेटली एक नजरिए से, एक सोच से आ रहा हूँ. अक्सर हमाद आपको कहता है कि यू नो व्हाट, हर बार मैं कहानी बताऊंगा एक उसमें कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, एंड आई माइट बी Yeah. लाइंग वन टाइम. इट्स नॉट हिम लाइंग एक्चुअली, होता ये है समटाइम्स. और मैं अपने बारे में बताऊं, वरना मैं आज एज अ फिल्म मेकर वाली सोच से आपसे बात कर रहा होता ना, मेरी कहानी बहुत डिफरेंटली वर्कआउट होती है, and I would have told you the whole thing Yeah. very differently, and that would be very different things that I would emphasize on. Same thing goes with the Right. musical thing. Same thing Of goes with course. if you were asking me about how my schooling was, I would have come really differently. No, जरूरी नहीं I खुशी, completely agree. It is खुशी what you डिफरेंट होती feel है फ्रॉम टाइम टू टाइम. right now. हाँ, Yeah, लेकिन yeah. जो It is चीज what you आपके feel पास right है, now. जो आपके पास चीज है, जो आप जिस चीज Yeah, को नर्चर कर रहे हो, और yeah. वही खुशी होती है. दैट्स इट. Nice. और एक और चीज है रेमिनिसिंग के बारे मैंने ये अभी Mm-hmm. पिछले दिनों हुआ था. आई वाज लुकिंग एट ये रूप सुहाना लगता है वाला जो इवेंट था, मेरे दिमाग में Mm-hmm. बहुत दफा प्ले आउट होता है दिमाग में. Huh. Yeah, it's Huh. it's it's just how it is. It's imprinted, Yeah. right? And Yeah. it's like one of Yeah. those really bad experiences of Yeah. your life. I was thinking, I was like, I don't ever want to feel like this, जो मैं भी feel कर रहा हूँ Huh. 30 years back अपनी बेटी की childhood को लेके. Because that back Right. then, 30 years from now, when I'm 60 something, 65, I Hmm. would be reminiscing about today. Right. Right. So today is important. Today is a Very lot more important. important. Right. जो गुजर गया है वो तो है. पता नहीं रब ने कितनी को जिंदगी देनी है. That's a whole different question all in all. लेकिन मेरे Yeah. लिए ये चीज important है understand करना कि 30 years from now I would be reminiscing about today. If Yeah. today Yeah. isn't lived to the fullest, फिर ये तुम्हारी गलती थी. आज तुम्हारे पास सब कुछ Definitely. था. It is very nice that to have that realization. I don't think most of us are in that aware state throughout, but if you have moments of Clarity. realization and clarity, I think you're good. You're pretty good to go because you have that check in place. Of course, you'll miss moments. Of course, you'll throw away, take things for granted, but then you will definitely come back to it because you know what to come back to. That is good. And how do you define success? Success is when I feel happy about where I am. Nice. Nice. That That's is it. beautiful. I mean, That is genuinely beautiful. Just a one line and so explanatory. Yes. Nice. again, it could have been different a few days ago, maybe, or an hour Of from course. now. It is कि what यार you मुझे feel right now. recognition चाहिए. But if I feel like Yeah. जो if I'm happy with where I am right now, वही success है. Definitely. How होती nice. वही है ना, क्योंकि आप Of course. आज आपको 10,000 लोगों का likes आ जाए इस Yeah. वीडियो के, और आप just next check करें and you're like, wow, this video's got like 10,000 likes and it's got 1 million views and stuff. That would Yeah. make you Yeah. feel, maybe this is not your end goal, but it would give you the success वाली feeling. वो आपको reward Of course. reward वाला आपको feel होगा. And अगली वीडियो में नहीं आता. So Of course. you might not feel it's like वो बात नहीं है. Success वो था जो आप कल महसूस कर गए थे पिछली वीडियो पे. So success is never like an end game नहीं है. Right. It's a continuous feeling कि आज क्या feel कर रहे हो, कैसा feel कर रहे हो. मैं उसको उस नजरिए से लेता हूँ. Maybe you might call it Nice. satisfaction. मेरे लिए ये होता है कि आज मैं जाऊँ, क्या मैं am I feeling it today? If I'm feeling it. Coincidentally, I have a very similar definition, but I just don't have words to put it exactly. And what you're saying is This is so why I'm doing this. relating. Don't you get it? I don't have words either. So I'm like, nurture and whatnot. No cages, good. no bound. क्या करें? यही है ना. Yeah. Emotions Yeah. आप उसको Perfect. ऐसे ही explain कर सकते हो. अगर नहीं किया जाता बिल्कुल. तो आप physical cues इस्तेमाल करें. Whatever works. चलें तो the last question is आपकी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री में I think we've missed a lot because हम लोग बहुत वेवर करते हैं, but इतने टाइम में जितना हो सकता है तो उतने में do you have I missed something that you would like to put or do you like कि ये तो मुझे बताना ही था पर इसने तो बिल्कुल ही नहीं पूछा. I mean, I don't think कोई भी ऐसी important चीज है जो बताने वाली है. Other than the fact कि please एक दूसरे को समझना कोशिश करो. That's it. Yeah. Try to listen to people rather than just hearing to them, you know. Oh yeah. Or the vice versa, whichever. मतलब समझ जाओ, सिर्फ सुनो मत समझो मतलब. समझो. Take in the information. And benefit of the doubt isn't a bad thing. देना चाहिए. हाँ. Human होने का margin दो ना दूसरे को. मैं आपको बता रहा हूँ. Why the other person has to be perfect? Deepika, one of the issues that most people face
स्पेशली जो लोग बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और कोशिश करते हैं, व्हाट वी स्टीयर क्लियर ऑफ लाइक डॉजी पीपल एंड स्टफ लाइक दैट, कि हमें पता है ये 2 नंबर लगा है, देखते सारी मुझे Yeah, पता लग गया था. yeah, You know what? yeah. Give them the benefit of the doubt. Trust me, जिस सांप ने आपको दसना है ना, सांप नहीं वो है, डस लेगा. वो डस लेगा. पर हाँ, you know what I mean. Not nothing against snakes. जिस बंदे ने Yeah, आपको बुरा करना है ना, definitely. कौन आर्टिस्ट कह लो, कौन एक्सक्यूज मी, आर्टिस्ट का काम ही वो है. देसीज में ये लोग इतना ज्ञान बांटते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है. आपके अपने भाई आपकी प्रॉपर्टी खा जाते हैं. आप ओ तो या, चुप रहें, आप तो हाँ ना बिल्कुल, बोलें. ऐसी है. एनीवेज, आई थिंक इससे बहुत लंबी हो गई है, बट थैंक यू बहुत सो लंबी हो मच फॉर गई. बीइंग सो जेनरस with your ना time, ना 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 ना, थैंक यू वेरी and मच फॉर it's हैविंग been मी. a pleasure मुझे having this फिनल conversation. मुझ Was so much fun कि मुझे सच में पता ही नहीं चला ये टाइम कहाँ गया. सेम थिंग हियर. मैंने 10:30 देखा, I'm like okay, तो हमारे पास घंटा ही पीछे रह गया. And it's like okay, now it's 12. Now it's Yeah, 12. yeah. Thank you so very much for having me, and yeah, definitely जब भी कहेंगे फिर आएंगे. Okay, Definitely. thank Okay you. then, take care. Bye. Khuda Hafiz. Bye bye. That is. Bye.